Hey guys, so welcome back to Talkie Talkie channel, and this is me Gayatri Rana. So guess who is with us? Today we have Vivek Krishna with us, as you all have seen him on Shark Tank. So let's move to Vivek Krishna. Thank you so much Vivek for coming on our podcast studio, and we hope that today we will find the solution of some problems that really exist. Thanks a lot, Gayatri. It's a pleasure coming to your show. It's a very big opportunity for brands like us whenever we do a podcast to come out and talk about things that people usually don't talk about. And I cannot promise that I can give you solutions to the problems that exist. But yes, I'll certainly try to enlighten your viewers about men's sexual health, why it happens, what are the few factors that contribute to this, and what can we do to avoid it. Exactly. Yeah, we cannot promise that you find solution, but yes, you Yes. are like solving some problems. If I can talk about the reviews that your brand has, Sure. and moreover, like, can you please share the journey of your entrepreneurship and what bring you to Shark Tank, and what was your experience? Sure. So, just to talk about my entrepreneur's journey, it started back in 2014 when a very popular series called Pictures started, right? So, Yeah. 2014 में एक series आया था TVF का, TVF Pictures, and it was the first startup show in India. And I had just come out of college and I was an engineer, and I saw that show and I saw that there is a wave of startups in India, and to celebrate that wave, it was the first show ever made, and it really motivated me a lot. I started my career as a software engineer in Philips, Okay. but then in the longer run, I knew that this is not something that I want to do, and I immediately 8 or 9 months after joining resigned from my job and started working for a venture called Talk HP. So Talk HP was was something like Go Mechanic, right? Okay. तो हम लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जहाँ पर हम लोग एट होम डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे थे ऑफ कार सर्विस, राइट? ठीक है। और लोग अपनी गाड़ियों को जैसे ही सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम ग्रे कॉस्ट्स दैट द सर्विस सेंटर्स इनकर ऑन कस्टमर्स. तो हमने बोला कि रादर देन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट, आप अपने घर के नीचे मोस्ट ऑफ द सर्विस जो आप करवा सकते हो, एंड देयर विल बी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट्स, राइट? इट विल बी वेरी चीप, रीजनेबल एंड ट्रांसपेरेंट. So we started that in Bombay, in Powai and in Ghaziabad. तो 2 विसिनिटीज़ पकड़ी हमने, एक छोटा सा चेक उठाया और हम लोगों ने काम करा इसके ऊपर for the first 6-7 months. It was really good, but then we started facing some challenges which were not scalable. और मेरा first time entrepreneurship था, so we kind of failed really bad. But yeah, I learned a lot of things. At least the good thing was that the first time we went to raise a check, we went and raised a check from a angel only, but yeah, it was pretty motivating for all of us because we were just college kids, and still we would manage to get check, like a venture capital check. After that, I started working in a lot of media channels. I worked with Dainik Bhaskar, I worked with Times of India. Okay. मैंने मीडिया सेल्स सीखी. फिर मेरा डिजिटल के टूवर्ड्स थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ. फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी. मतलब आई एम नॉट डन एनी courses and all, and I don't believe in it. मेरा on ground skill है, hands on skill develop किया है मैंने जो भी किया है, and even till now to this date all of the performance marketing that you see in Sukham is being handled by me. So मैंने performance marketing सीखी. फिर उसके बाद I worked with these brands, and then eventually I went and worked with the big brands like ITC etc. in my stint as a marketing manager with Netri. So यहाँ तक मेरा जॉब्स और स्टार्टअप्स का एक थोड़ा सा रॉन्डेवू चल रहा था, कभी जॉब कभी स्टार्टअप. बट मतलब जो जॉब भी था वो भी स्टार्टअप्स पे ही था, यूजुअली इन अ कोर सॉर्ट ऑफ जस्ट लाइक आपने तो बहुत कुछ किया है. तो लाइक जब आपका स्टार्टअप फेल हुआ तो डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने तो वेंचर कैपिटल रेज किया था? हाँ, तो मतलब जब एक स्टार्टअप फेल होता है, देखो क्या होता है ना, whenever you are raising, right, you give a beautiful story to your investors. Exactly. And that is because you also believe in that story. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोल रहे होते हो. उस समय आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करके एक थीसिस बनाते हो और आप अपने इन्वेस्टर्स से पैसे उठाते हो. बट जब वो थीसिस समझ में आता है कि सही नहीं है, और जब वो चीज़ टूटने लगती है, तो वो उतना ही डिफिकल्ट होता है. एंड येस, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, देयर आर जो आपका इन्वेस्टर होता है उसको भी ऐसा लगता है. बट मेरे केस में क्या था, आई वॉज ऑलवेज अ वेरी ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर. मेरा MIS टाइम पे जाता था, मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को सब बताता था, जो भी चैलेंजेस थे वो भी बताता था. मैं इन्वेस्टर चेक लेते से लेकर इन्वेस्टमेंट आने तक और उसके बाद भी अपने रिलेशनशिप को उतना ही एक्साइटिंग रखता था जितना मैं चेक लेते टाइम रखता था, राइट? और मैं हमेशा ये भी मेक श्योर करता था कि जो भी मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मैं वोकली जाके
बात कर रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स को और उनको बता रहा हूँ कि ये चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ बिकॉज वी आर इन इट टुगेदर. सो व्हाट आई सी नाउअडेज विद अ लॉट ऑफ यंग फाउंडर्स इज वो लोग अपने इन्वेस्टर्स को बातें बताते नहीं. और उनको ऐसा लगता है कि उनको एक सारी पिक्चर दो यार, इन्वेस्टर को इतना ही बताना चाहिए जितना जरूरी है. बट मुझे ऐसा लगता है इट्स शुड बी द अदर वे अराउंड, और इन्वेस्टर को वो सब बताना चाहिए जो प्रोबेबली आपकी कोई टीम को भी ना पता हो. But the thing is, like as per the people mentality, like if I want to raise some capital, so मैं अगर किसी जाके मैं angel investor को बताती हूँ this is my concept, this is my idea and I'm going to execute it like this. ठीक है, तो अगर आप उसको बिल्कुल डीपली बताते हो एंड कोई लूप होल अगर हमारा एंजल इन्वेस्टर पकड़ लेता है तो वो हमें इन्वेस्टिंग क्यों देगा? जस्ट लाइक यू आर सेइंग कि टू बी ऑनेस्ट विद द फाउंडर, लाइक आपको तो अपने बिजनेस पे यकीन है, अगर उसने कोई लूप होल पकड़ लिया तो वो कैसे यकीन करेगा? वो देगा ही नहीं आपको. सो यहाँ पे दो चीजें, अगर आपको देखो एज ए ह्यूमन राइट, लेट्स से गायत्री है और विवेक है, अभी हम एक दूसरे को मान लो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और एक स्ट्रॉन्ग थीसिस है और हमें लगता है कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसे और एक्सप्लोर किया जा सकता है. तो मैं ये तो आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में, ना ही आप प्रॉमिस कर सकते हो. सिमिलरली व्हेन वी स्टार्ट अ कंपनी, हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं एंटरप्रेन्योर्स राइट. उस प्रॉब्लम पे हम एक थीसिस बिल्ड करते हैं, सोल्यूशन का भी और उस प्रॉब्लम के अराउंड चैलेंजेस भी, कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है, वो आज तक सॉल्व क्यों नहीं हुई, उसके क्या एग्जैक्टली इनपुट आउटपुट प्रोसेस है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जा सकता है या आपको लगता है कि हो जाए. आप जब ये थीसिस बिल्ड करते हो तो आप अपने इन्वेस्टर को जाके इस थीसिस के बारे में बताते हो. अगर उस इन्वेस्टर को ऑलरेडी इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता है तो वो अपना ज्ञान भी देता है और फिर आप उसको भी इनकॉर्पोरेट करके अपने थीसिस को और स्ट्रॉन्ग करते हो. बट इस पूरे प्रोसेस में 100% इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकती. प्रोबेबली प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हो सकती है बट प्रैक्टिकली नहीं हो सकती. नाउ लेट्स से आप उस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करते हो एंड नाउ यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट देयर आर इश्यूज. नाउ यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ये प्रॉब्लम तो इसके बियॉन्ड भी है, इसके एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा इश्यूज है. आपको ये भी कई बार रियलाइज होता है 6 months डाउन द लाइन कि यार ये प्रॉब्लम अभी तक इसीलिए सॉल्व नहीं हुई थी क्योंकि शायद ये सॉल्व हो ही नहीं सकती थी इस मेथड से राइट. तो वहां पर जाकर आप और उस प्रॉब्लम को डिग डीप करते हो तो आपको एक फाइनल थीसिस मिलता है और उस थीसिस में कई बार चैलेंजेस और इश्यूज होते हैं. आपको अपने इन्वेस्टर को ये सारे चैलेंजेस और इश्यूज बता देने हैं बट साथ में आपको ये भी बता देना है कि इन इश्यूज को डील करने के लिए आपने क्या सोचा है. सो दिस एग्जैक्टली हैपेंड व्हेन आई वाज रेजिंग माय राउंड विद सुखम राइट. आई वेंट टू माय इन्वेस्टर संजय एंड यज्ञेश एंड आई टोल्ड देम 100x VC में कि यार मेरे जो कैटेगरी है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा कंज्यूमर, मर्द खुल के बात ही नहीं करेगा राइट. तो मेरे इन्वेस्टर्स ने बोला भाई वो तो बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिफाई तो तूने किया है, अब तू ही मेरे को बता रहा है कि तेरे कैटेगरी में इतना प्रॉब्लम है तो मैं तेरे में पैसा क्यों लगाऊं. तो मैंने उनको बताया कि देखो यार कंज्यूमर खुल के बात नहीं करेगा ये प्रॉब्लम है बट मुझे ऐसा लगता है कि आज तक कंज्यूमर को एक अच्छा लिसनर नहीं मिला है इसीलिए वो खुल के बात नहीं कर रहा. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई कैन मेक द पर्सोना ऑफ माई ब्रांड ऑफ अ ब्यूटिफुल लिसनर, probably the consumer will talk to me right. And if I give them the empathy that they can speak with me right, एक मर्द को एक अच्छा एनवायरनमेंट दो अब खुलने के लिए तो वो बिल्कुल खुलता है राइट. वो अपने दोस्तों के साथ खुलता है ना, वो अपने दोस्तों के साथ हर तरह की बात करता है, प्रॉब्ली 2 बियर पीने की बात करता है पर करता तो है ही है राइट. मतलब पता होता है ना कि ये मेरी सुनेंगे, मुझे समझेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे. सो मैंने वही बोला कि मैं वो एनवायरनमेंट जनरेट करूंगा विद कंटेंट और उसमें मैंने अपना थीसिस बताया और मैंने अपने एक्शनेबल स्टेप्स बताए और मेरे इन्वेस्टर्स ने खुशी खुशी ये जानते हुए कि ये कैटेगरी डिफिकल्ट है मुझ में पैसा डाला बिकॉज दे वर हैप्पी दैट आई केम विद द प्रॉब्लम एंड आई केम विद द सॉल्यूशन एंड आई वाज ऑनेस्ट विद देम. So I think in the longer run, honesty is the biggest policy for any entrepreneur and the resilience that you know कि ये चैलेंज सॉल्व होने में जो समय लगेगा उतने समय तक हमको रेजिलिएंट रहना है. हमको समझना है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व होने में उतना टाइम लगेगा और हमको उतने टाइम तक रेजिलिएंट रहना है. अगर ये मैट्रिक्स बेसिक है तो चेक तो आप उठा लोगे, इन्वेस्टर भी अच्छा इन्वेस्ट कर लेगा और आपका एक अच्छा थीसिस पे एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे राइट. सो लाइक जब आपने सुखम को एस्टेब्लिश किया, लाइक बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ मेन सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड, कुछ तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा ना जो आपने पकड़ा होगा कि यार ये कमी है. मतलब कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई आपका नोन होगा जिसमें आपने मतलब यहाँ पे ये लूप होल है यार, व्हाई दे आर नॉट डिस्कसिंग इट. व्हेन इट स्टार्टेड लाइक देयर शुड बी सम अ ब्रांड जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करे
और जो लोग इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो भी बात करें. Sure. वो अपफ्रंट आए कि हाँ लाइक वी आर फेसिंग सम इशू बट वी कैन सॉल्व इट. Sure. So, you know, I was a basketball player, right? And before this, I used to run a professional basketball league. And one of the biggest basketball players in India, who's right now also playing, who has played for the Indian national team, Okay. had a similar issue, right? He didn't have a sexual wellness problem or a sexual health problem, but he had something where he was not able to conceive a baby. Right. And I was so startled by the fact because यार मैं एक एथलीट हूँ और मैं हर एक एथलीट को पता होता है कि वो किस ग्रेड का एथलीट है. मैं एक एथलीट था, मैं एक अच्छे ग्रेड का एथलीट था, बट मुझे पता था वो तो नेक्स्ट लेवल एथलीट है. उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका बॉडी टाइप, 6 फुट 7 इंच का लौंडा, वेल बिल्ट, ग्रीक गॉड, स्टिल ये प्रॉब्लम है. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट रिलेशन टेस्टोस्टेरोन या ऐसी किसी चीज से तो है नहीं है. मुझको ये भी रियलाइज हुआ कि यार जरूरी नहीं कि बिकॉज यू आर वेल बिल्ट एंड बिकॉज यू लुक गुड एंड बिकॉज यू आर वेरी मैस्कुलिन तुमको ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती. In fact, a lot of people who think that they're over masculine eventually end up going to IVF centers to have babies. Right. So what exactly was that factor intrigued me? अब ये मेरे मन में बात रह गई थी. फिर मैं एक बारी टोक्यो में एक जगह थी शिबुया, वहां पर वैसे ही अपने दोस्तों के साथ था. while doing this basketball league only we went to उत्सुनोमिया. तो हम उत्सुनोमिया से टोक्यो भी गए थे. तो शिबुया में मैंने देखा कि यार एक पर्टिकुलर रोड के कोने पे शिलाजीत कोई बेचा जा रहा था, बट विद अ वेरी डिफरेंट पोजिशनिंग. और ये जो आजकल गमीज आ रहे हैं ना, मैन मैटर्स और दूसरे ब्रांड्स जो ये गमीज निकाल रहे हैं, ये एक्चुअली उस समय वहां पर उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा था. एंड आई वाज वेरी स्टार्टल्ड कि यार हमारे शिलाजीत को, जो कि हमारे आयुर्वेद का क्या है, वो भी शिलाजीत ही बोलते हैं उसको? नहीं, वो मतलब शिलाजीत तो बोलते हैं, बट उसको पोजीशन किसी और तरह से कर रखा था उन लोगों ने, राइट? उन लोगों ने कुछ मिनरल्स का पोजीशनिंग ले रखा था, द ब्लैक रॉक मिनरल और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो मेरे को लगा यार हमारे प्रोडक्ट को टोक्यो में ऐसे बेच रहे हैं और खरीद अमेरिकन और यूरोपियंस रहे हैं, राइट? तो मुझको बड़ा एक्साइटिंग लगा. सो आई केम बैक टू इंडिया एंड मैंने ना एक दिन सोचा कि यार चलो एक बार मैं कस्टमर बन के जाता हूँ डॉक्टर्स के पास, ये बोल के कि भाई मेरे को ही प्रॉब्लम है, राइट? That was and I really did it. Yeah, and I really did it. And what happened was that मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गया, मैं एंड्रोलॉजिस्ट के पास गया, मैं बहुत सारे आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के पास गया, होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास गया. और मैंने देखा कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, डायग्नोस करने का, और कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का. आपको जो दवाई एक एंड्रोलॉजिस्ट लिख रहा है, वही दवाई एक यूरोलॉजिस्ट भी लिख सकता है और वही दवाई एक साइकियाट्रिस्ट भी लिख सकता है. मुझको बहुत वियर्ड लगा, बिकॉज एक प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी है जिसका कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है, वहां पर लोग सिल्वर बुलेट की तरह एक ही प्रोडक्ट चला रहे हैं, राइट? जस्ट बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन ऐसा कहता है. बट वेन आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट दिस, मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पीछे का जो आयुर्वेदिक मेथड था और जो आयुर्वेदिक नॉलेज था और जो आयुर्वेद का पूरा एक डेडिकेटेड ब्रांच है वाजीकरण, जो कि इसी प्रॉब्लम से डील करता है, उसका जो पूरा आउटलुक था वो बहुत अच्छा लगा. वाजीकरण क्या होता है? सो वाजीकरण आयुर्वेद की एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा ब्रांच है जो डेडिकेटेड मेंस सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर डील करता है. ओके, राइट? और उसका यही कहना है उस पद्धति का कि हमारी बॉडी में जो सेक्सुअल हेल्थ है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो वन ऑफ द 7 टिश्यूज में से एक टिश्यू है. और वो वन ऑफ द प्राणास में से एक प्राणा है. तो इसका मतलब यह है कि अगर वो डिस्ट्रॉय या डिप्लीट हो रहा है तो आपकी बॉडी में और बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. आज मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि कार्डियक हेल्थ से आपका सेक्सुअल हेल्थ लिंक्ड है. आयुर्वेद इसे और ब्रॉडली देखता है. वो ये बोलता है कि आपके मेंटल हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, आपके ब्लड हेल्थ, आपका प्लाज्मा एज अ टिश्यू, आपका बोन हेल्थ, आपके 7 डिफरेंट टिश्यूज के हेल्थ के साथ लिंक्ड है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और अगर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है तो इसका मतलब आपको हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपका शरीर विकृत हो चुका है. विकृत मतलब दूषित हो चुका है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है विच यू नीड टू नाउ आइडेंटिफाई एंड क्योर और हील. तो मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगा, मुझे बहुत होलिस्टिक लगा. और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो टिल माय जर्नी विद सुखम आई वाज वन ऑफ दोस गाइज जो वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्न मेडिसिन, इन सब चीजों पे ज्यादा बिलीफ रखता था. बट इट्स नॉट लाइक आई हैव नॉट बीन इन टच विद माय कल्चर. मैंने 14 साल की उम्र में पहली बार भगवद गीता पढ़ लिया था. पर मुझको ऐसा लगा कि सुखम के बाद मेरा कोर बिलीफ सिस्टम अबाउट द वे वी लुक्ड एट sexuality, about the way we looked at overall health and overall well-being is way better than what the Western
वर्ल्ड लुक्ड इट एज। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल कामासूत्रा भी है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल रति शास्त्र भी है, जो ऐसे ग्रंथ है जिनको हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक टबू सेक्सुअल पोजीशंस और इन सब चीजों के बारे में ही बात करता है। जस्ट लाइक आप इन ग्रंथ की बात कर रहे हो, कामासूत्रा ग्रंथ है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपने इनको पढ़ा होगा, क्या इनके अंदर सेक्सुअल लाइफ के अलावा और भी बहुत कुछ है? बहुत कुछ है। सो कामासूत्रा, रति शास्त्र, दीज आर बुक्स अबाउट compatibility. Okay. These are books about how to make sure that your partner and you are the most compatible. Okay. Spiritually. So we can say that if किसी को if someone wanted to find their perfect match, तो उनको ये बुक रीड करनी चाहिए। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि पहले जो हमारे गुरुकुल होते थे, राइट, पहले जो हमारे मंदिर होते थे, जैसे खजुराहो में कामासूत्र की पोजीशंस बनी हुई हैं और उसी से सब फेमस हो गया कि यार इंडिया में तो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सेक्सुअल पोजीशंस बनी हुई है। Right. लोग ये भूल जाते हैं कि वो बस एक पार्ट ऑफ द मंदिर है, उस मंदिर में और भी बहुत कुछ बना हुआ है। उस मंदिर में ऐसी मुद्राएं बनी हुई है जिसमें पूजा करी जा सकती है, उस मंदिर में ऐसी मुद्राएं बनी हुई है जिसपे साधना करी जा सकती है, योग की बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि पहले एक बंदा पढ़ता था, ज्योतिष शास्त्र पढ़ता था, रति शास्त्र पढ़ता था, काम शास्त्र पढ़ता था, खुद को जानने के लिए और ये जानने, अपने नेचर को जानने के लिए, अपने बीइंग और बिकमिंग दोनों को जानने के लिए कि वो क्या है और क्या बन सकता है। और जब वो खुद को जान जाता था तो उसे एग्जैक्टली पता होता था कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। राइट। तो इन किताबों से आपका पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल खुलता है। लाइक अगर हम बात करें मंदिर की और बात करें सेक्सुअल लाइफ की, ये दोनों ही ऐसे हैं जैसे कि अलग अलग रास्ते। हाँ। तो जब एक ही जगह पे दोनों चीजें देखी जाती हैं तो उसके ऊपर तो बातें होती है। तो वी कैन हाउ दे बोथ आर रिलेटेड कि एक मंदिर में एक सेक्सुअल पोजीशंस की मुद्राएं बनी हुई हैं। व्हाई, व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट? हमारा इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है कि हमारे यहाँ पर सेक्सुअलिटी का एक देव है जिसे कामदेव बोलते हैं, राइट? हमारे कल्चर में, मैं अभी आजकल ओशो को बहुत पढ़ रहा हूँ, उसने एक किताब लिखी संभोग से समाधि, राइट, जिसका मतलब है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। Okay. उसने ये बोला है कि सेक्सुअलिटी को ट्रांसफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है जस्ट बाय नॉट लुकिंग एट द रफ लेयर ऑफ सेक्सुअलिटी। लोग क्या है ना, लोगों, देखो हम कभी भी इतने टबू नहीं थे, राइट? वेस्टर्नर्स केम एंड दे ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नेवर हैड। अगर आप एंशिएंट इंडिया देखोगे ना, तो हमारे यहाँ पे ऐसी कहानियां होती है जहां एक औरत ने 5 पति रखे थे, द्रौपदी, और फिर भी वो एक सामाजिक और एक रिस्पेक्टेड औरत थी, राइट? उसे हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था क्योंकि उसने 5 गुण मांगे थे और 5 गुण के 5 पति मिले। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन था, सोशल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ अ वुमन कि एक औरत सब कुछ चाहती है और उसे अगर सब कुछ चाहना, सब कुछ ही चाहिए, तो उसे फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 पति रखने पड़े। बट इससे एक चीज और सीखने को मिलती है कि परफेक्ट कोई नहीं होता। लाइक exactly. अगर तुम्हें हर गुण चाहिए तो तुम या तो फिर तुम्हें एग्जैक्टली सो वो एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल बनना पड़ेगा, अदरवाइज एडजस्ट करो। सो वो एक सटायर है। वो यही बोलने का मतलब है कि हर गुण जरूरी, और 5 गुण होने के बाद भी उसे जुए में दांव में लगा दिया जाता है, चीट हरण फेस करना पड़ा। एग्जैक्टली जबकि 5 गुण थे। तो इसका मतलब ये भी है कि जरूरी नहीं कि सर्व गुण संपन्न ही आपके लिए कंपैटिबल भी हो। तो ये ना अलग अलग तरह के सटायर्स हैं। आज की प्रॉब्लम क्या है, हम एक कहानी पढ़ते हैं और हम इस चीज पे लड़ाई करते हैं कि राम अयोध्या में कहां पैदा हुआ था। रादर हम इस चीज पे बहस करते कि राम रिप्रेजेंटेशन किस चीज के हैं, हनुमान रिप्रेजेंटेशन किस चीज के हैं। So अभी मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, it's work in progress. So the subtitle of the book, the title of the book is not out as yet, but the subtitle of the book is that entrepreneurship and spirituality is not for everyone. Yeah. Jobs and religion are for everyone. And in that, what I'm writing is मैं वेदास, पुराणास, वेदांत, उपनिषद, यहाँ से स्टोरीज उठा रहा हूँ और उनको कंसिस्टेंट कर रहा हूँ स्टार्टअप स्टोरीज के साथ। और मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे जो चोजन वन है, जिनकी ओरिएंटेशन है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैं चोजन वन हूं या आप चोजन वन है, मैं ये समझा रहा हूं कि किस तरह से हम वो चोजन वन बन सकते हैं। सो ये पूरा बुक का एंड द कोर बिलीफ केम फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन आई राइट कामा सूत्रा, व्हेन आई राइट ओशो, आई रियलाइज दैट जितना ऊपर से हम सेक्सुअलिटी को देख के उसे टबू बना लेते हैं, ये उतना मुश्किल और ये उतना बेसिकली फ्रिवलस है नहीं। इट्स अ वेरी डीप thing that we need to understand, that why God gave humans the only species that is dominating the earth the ability to feel pleasure while having sex. Animals don't. We do. Why?
Why God gave us that sense that, you know, we exactly know who our partner is. We have a social and a legal binding to that partner. हम शादी करते हैं, बाकी जानवर तो नहीं करते, और हम उस सोशल और लीगल बाइंडिंग के साथ अपने परिवार को क्लासिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाते हैं कि तू आज राणा है और मैं आज कृष्णा हूं, राइट? वो क्यों है, वो क्यों तू जाट है और मैं राजपूत हूं, और क्यों ये चीजें हैं? बिकॉज हम लोग वैसे ही स्ट्रक्चर हो रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को वो क्लासिफिकेशन का एबिलिटी भगवान ने दिया है, राइट? बट वो एबिलिटी क्या डिविजन के लिए दिया था? नहीं, वो इंक्लूसिव के लिए दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि डाइवर्सिटी इन इंक्लूजन, राइट? बट हम लोगों ने उसको गलत समझा। सिमिलरली हमने सेक्सुअलिटी को गलत समझा। सिमिलरली हमारे पास कामदेव है, सिमिलरली हमारे वेदों पुराणों में हर जगह काम है, श्रृंगार है, और ये सब सेक्सुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और हम एक ऐसा रिलीजन है जो, नॉट टू से रॉन्ग अबाउट एनी अदर रिलीजन, बट कई रिलीजन्स में इसे कार्डिनल सिन, इसे बुरा बोला जाता है, पर हमारे रिलीजन में बोला जाता है ये ट्रांसफॉर्मेटिव है और इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है और संभोग से समाधि की ओर जाया जा सकता है। ओके, एंड जस्ट लाइक आपने कामदेव की बात की है कि कामदेव है एक तरीके से, वो देवता है, देवी भी है, देवता भी है। जस्ट लाइक हमारे राम जी देव है, सीता जी देवी है, हम उनकी पूजा करते हैं। क्या कामदेव और कामदेवी जी की भी पूजा होती है? बिल्कुल होती है। मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल पूछा है गायत्री आपने। तो मैं अभी कुछ दिनों तो नहीं, 1.5 साल पहले मेरी लाइफ में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मोड आया जब मैं गोपीनाथ के मंदिर गया। और मैंने इट्स इन चमोली इन उत्तराखंड, राइट? और मैंने वहां जाके देखा रति कुंड, जहाँ पे आज भी कामदेव और रति वो मछली के फॉर्म में है। तो ऐसा बोला जाता है कि कामदेव को भस्म कर दिया था शिव जी ने। और देखो कितनी ब्यूटीफुल और रिप्रेजेंटेटिव स्टोरी है ये भी, कि शिव जी अपने तपस्या में बैठे हुए थे और शिव जी का एक रूप, बेसिकली जिनको हम शंकर बोलते हैं, वो तपस्या में बैठे हुए थे, और कामदेव और रति अपना दे वर ट्राइंग टू उनकी तपस्या भंग करना चाह रहे थे। बट शिव तो घोर तपस्वी है, वो लगे रहे, बट एक टाइम तक के बाद इतनी संवेदना उजागर कर दी कामदेव और रति ने कि एकदम से शिव जी की आंख खुली, पर ये दोनों नहीं, तीसरी आंख खुली और उन्होंने दोनों को भस्म कर दिया। और जब भस्म कर दिया तो फिर सारे भगवान है, और उन्होंने बोला कि भाई दे नीड टू बी देयर, बिकॉज humans will increase their race because of reproduction. They need to have that sexuality in them, and they are the representation of that sexuality. They are the energy of that sexuality. तो शिव जी ने बोला कि चलो आज तो कामदेव का उससे पहले जो हर एक भगवान का एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, राइड एक राइड होता है ना, जैसे कि मैं ये चीज हैंडल करता हूँ, नहीं राइड मतलब जैसे गणेश जी का चूहा है, सब राइड सवारी, राइट? सवारी करते हैं ना वो, हाँ। तो इनकी सवारी शायद मोर थी, तो जब वो भस्म हो गए तो अब तो उनका शरीर रहा नहीं, तो अब उनकी सवारी कुछ और होगी। तो भस्म होने के बाद पता उनकी सवारी क्या है? इंसान का मस्तिष्क। इट इज सो रिप्रेजेंटेटिव कि 24 घंटे जो हमारे दिमाग में सेक्स चल रहा होता है और सेक्सुअलिटी के बारे में हम सोच रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज वन ऑफ द इंद्रियां जो हमको हमेशा उस तरफ लेकर जा रही है। एंड दिस इज ऑल्सो प्रूवन इन द फ्रॉइडियन थ्योरी ऑफ sexuality, and the Freudian theory of psychology, in which he says that एक इंसान की जिंदगी में 3 फेज आता है। पहला फेज होता है ओरल फेज, जब बच्चा हर चीज मुंह में डालता है। दूसरा फेज होता है एनल फेज, जिसमें बच्चा पॉटी ट्रेनिंग करता है, जिसमें उसको समझाया जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और तीसरा फेज होता है फैलिक फेज, जिसके बाद हर चीज वो जो करता है वो सेक्स के अराउंड करता है। उसका स्टिग्मा ही सेक्स होता है लाइफ का सबसे बड़ा। तो ये दोनों थ्योरीज जब मैच होती है ना, हमारी ईस्टर्न मिस्टिक थ्योरी और जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के बाद वाली थ्योरी जब मैच होती है, तो हमको रियलाइज होता है कि कैसे ये एक कांस्टेंट है हमारी लाइफ का, पर हम इसे इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज हम इसको टबू का नाम देते हैं। अगर किसी को इस चीज के बारे में और भी डीप नॉलेज लेनी है, लाइक मैन सेक्सुअल वेलनेस की बात हो या फिर सेक्सुअल लाइफ की बात हो, तो इसके बारे में अगर किसी को डीप नॉलेज लेनी है तो कौन सी बुक, कौन सी शास्त्र, कौन से वेद उनको पढ़ने चाहिए? देखो, वेद और शास्त्र तो क्या है कि एक सर्टेन ओरिएंटेशन के बाद ही पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैंने भी बहुत समय के बाद जब मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, तब वेद के ट्रांसलेशन और इन कामसूत्र और रतिशास्त्र के ट्रांसलेशंस उठाए। ठीक है, बहुत ही डेयरिंग है वेद को इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म पढ़ लेना, हम बहुत लोगों के बस की बात नहीं है। बट कुछ किताबें, सीमा आनंद मैम है जो बहुत अच्छा बात करती हैं इसके ऊपर, उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो। फॉर दैट मैटर, आप अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे ना, तो अगर आप बस हमारा ब्लॉग पढ़ लो
और हमारे 10-12-20 ब्लॉग पढ़ लो और हमारे बेसिक बाजी करना और कामसूत्र और इन सब के पेजेस पढ़ लो तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा. तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे तो हमारी वेबसाइट इज़ नॉट लाइक अ टिपिकल D2C वेबसाइट. उसमें बस प्रोडक्ट्स नहीं है, उसमें बहुत नॉलेज है गायत्री. मेरी वेबसाइट पे आज इतना नॉलेज है कि अगर उसको कंपाइल किया जाए तो अपने आप में एक किताब बन जाए. तो आप वहां भी जाके पढ़ सकते हैं. दैट मेक्स सेंस ना कि आपने प्रोडक्ट भी उसी अकॉर्डिंग ही बनाए होंगे ना, बिकॉज यू गाइस हैव नॉलेज. सी होता क्या है, माय प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ D2C ब्रांड्स ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर इज दैट they don't know anything about the sexual health side of it or the sexuality and how people want to explore sexuality side of it, right? So this is a physiological and a psychological aspect. इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है. हमारी बॉडीज भी इन्वॉल्व है, हमारा माइंड भी इन्वॉल्व है. और जब तक इसकी ट्रू नॉलेज नहीं है ना, तब तक मुझे लगता है इसके बारे में कोई भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है, राइट? आज भी मैंने आपके पॉडकास्ट शुरू होते ही ये बोला कि मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं ना करूं मुझको नहीं पता, कोशिश कर सकता हूं मैंने जो पढ़ा है वो बताने की, राइट? और अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो मैं बहुत एक्सेप्ट करता हूं लोग मुझे आके वेरीफाई करें. टचवुड आज तक ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर हुआ है तो मेरे को इसमें कोई ईगो नहीं है, राइट? बिकॉज हम लोग सब एक्सप्लोर ही तो कर रहे हैं. ऐसा तो कोई आके बोल नहीं सकता कि मैं एनलाइटन हो गया और बुद्धा बन गया, राइट? तो मेरा ये बोलना है कि ब्रांड्स नीड टू नो व्हाट दे सेल एंड व्हाट माय विजन फॉर सुखम एंड माय टीम्स विजन फॉर सुखम इज that, you know, even Ananya, my co-founder, she's relentlessly working every day to create content which is not funny, which is not, we do make funny content also, but हम लोग slapstick side of sexuality पे ज़्यादा focus नहीं करते. आपका content जो है ना, आपका जो topic है brand का, वो ऐसा है कि आपको एक boundary तक रहना पड़ता है. If you reach that boundary, if you cross that boundary, maybe people get it like पता नहीं क्या sell कर रहे हैं, ये वल्गैरिटी सेल कर रहे हैं. लाइक देयर आर सो मेनी पीपल विद नैरो माइंड एंड सम आर विद पॉजिटिव माइंड कि हाँ भाई कोई हमारे लिए बात कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है तो हमारे काम की ना. तो देर इज लाइक ब्रांड ही ऐसी है आपकी कि कई लोग उसको खुल के बात करना नहीं चाहते, बट व्हेन वी पीपल लाइक कि हम जब खुल के बात करते हैं ना, सो हमारे अलावा हज़ारों लोग बहुत से वो होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये तो बात कर रहे हैं, वो भी एक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जिसको दुनिया देख सकती है. तो हम तो फिर भी एक बंदे के साथ लाइक डॉक्टर के साथ बैठने में शर्मा रहे हैं. ट्रू. तो ये चीज़ इंप्रूव होती है. या सो मेरे को ऐसा लगता है कि यू नो बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में और मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट वो पॉर्न स्टार्स को ला रहे हैं आज की डेट पे अपने एड्स में. वो यू नो दे आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ दिस टॉपिक. नो लाइक आई थिंक वो एक तो लाइक आज के यूथ की अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं, यूथ की नहीं, व्हेन इट कम्स टू द ऑल एज ग्रुप. पॉर्न स्टार अगर आ रहे हैं तो दे थिंक लाइक they can pay them and get their public attention very easily. And second thing, like they are famous for some vulgarity. But I think this is a defaming of their brand as per my perspective. Similar. I don't think that, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए. Right. मुझको ऐसा लगता है कि इस पे एम्पैथी बहुत ज्यादा मैटर करता है, rather than you know making it more sensitizing. मैं बोलूँगा make it more sensitive, making it more you know vulgar. I would say make it more inciting and exciting at the same time. और ये एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत ही अच्छे से नेविगेट करके स्पिरिचुअलिटी तक लेके जा सकते हो. ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत अच्छे से नेविगेट करके लव तक लेके जा सकते हो, बिकॉज किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में आप इस टॉपिक को अगर लाओगे तो वो रिलेवेंट हो ही जाता है. एग्जैक्टली. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक हमें इस टॉपिक को सुपीरियर नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं दिखाना है. इट्स जस्ट लाइक अ कैजुअल थिंग. इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, जस्ट मेक इट कैजुअल, हैव योर क्योर. एग्जैक्टली. सो मैं हमारे कंपनी में हम लोग जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं, हम हमेशा उनको बोलते हैं सर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ. आप में कुछ खराब नहीं हुआ है, आपको कोई इशू नहीं है, आप जैसे हो वो सही है, हम आपका बेस्ट वर्जन निकालने की कोशिश करेंगे. आप जो हो उससे बेहतर हो सकते हो, पर किसी और से कंपैरिजन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ कस्टमर्स दैट कम टू मी एंड टेल मी दैट आई हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन और आई हैव प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और ऐसी कोई भी चीज, तो हम उनको बोलते हैं सर आपको कैसे पता आपको ऐसा? तो बोलते हैं यार हमने ना उस मूवी में देखा था कि वो ऐसे. सो बेसिकली दे आर नाउ कंपेयरिंग, उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अ पॉर्न मूवी, राइट? यू कैन नॉट कंपेयर टू दैट बिकॉज दैट इज एन एक्ट, राइट? इट्स अ शेड्यूल. वहां पे 3-3 दिन का शूट होता है, वो लोग वो शूट करते हैं, दे बिल्ड इट इन अ वे कि वो हमारा एस्पिरेशन बिल्ड कर रहे हैं इन अ सर्टेन वे विच इज नॉट राइट. But when men are looking at that and forming expectations there, वो अपने लिए बहुत ही wrong expectations set कर रहे हैं because that's not humanly possible.
एक्सपेक्टेशन की बात आए, अगर एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो आजकल एक्सपेक्टेशन ऐसे भी आते हैं कि कई लोग मीम भी बनाते हैं इन चीज़ों पे कि हु लास्ट लॉन्गर, एग्जैक्टली। सो एंड इफ यू डोंट लास्ट लॉन्गर, लाइक वो लॉन्गर की कोई बैंडविड्थ नहीं किसी ने सेट की है, बट स्टिल दे आर मेकिंग लाइक ओह यू तुम तो ऐसे हो, यू विल नॉट लास्ट लॉन्गर। सो मैं ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बोलना चाहूंगा। मैं तो एड्स देखता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स चलाते हैं, लास्ट 7x लॉन्गर। 7x ऑफ व्हाट? हाँ, किस चीज का 7x? भाई अगर कोई 1 मिनट लास्ट कर रहा है तो तू उसको 7 मिनट करवाएगा, और अगर कोई 7 मिनट कर रहा है तो 50 मिनट लास्ट करेगा। कोई वैल्यू ही नहीं हुई ना ये। सो दिस इज मिसलीडिंग द कस्टमर। एट सुखम वी हैव अ स्ट्रॉन्ग rule about customer communication that we will never claim any result and we will never mislead the customer. And this is what even in Shark Tank I fought Vinita about, right? That विनीता ने जब मेरे को बोला कि आपने लॉन्ग लास्टिंग ऑयल लिखा है, मैंने बोला मैम ऑयल लॉन्ग लास्टिंग है, इसको लगाकर आप लास्ट लॉन्ग करेंगे मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूं। क्लेम नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो उस चीज पे जब उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया तो मुझको रियलाइज हुआ, तो मेरे को लगा अच्छा क्या पता मेरा कस्टमर भी ऐसा सोच रहा हो, तो मैंने वो लॉन्ग लास्टिंग ऑयल हटा ही दिया। अब उसका नाम आयुर्वेदिक ल्यूब है, राइट? बट मैंने कभी भी उस प्रोडक्ट को उस पोजिशनिंग की तरह से नहीं देखा था, राइट? व्हेन माय प्रोडक्ट सेज हर्बल परफॉर्मेंस बूस्टर, वहां पे इट इज रिटन दैट देयर इज नो इंस्टेंट रिजल्ट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड और प्रॉमिस्ड टू यू. इट इज अ परफॉर्मेंस बूस्टर बिकॉज इट डज बूस्ट परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग this and it is very scientifically proven on the packaging as well as the communication we built. So मुझको ऐसा लगता है कि एक wrong expectation set कर देना किसी के माइंड में about a certain product just because वो vulnerable है is wrong. Right. Like when it comes to like Shark Tank की अगर थोड़ी बात की जाए, नमिता ने काफ़ी आपके लाइक मिस इंटरप्शन भी हुई थी, काफ़ी चीज़ों पे पॉइंट आउट भी किया था कि CTRI नहीं हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें. तो क्या आपको लगता है कि जो ये प्रॉब्लम लोगों में आती है, मेंस फेस करते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक वो लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाते या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो आयुर्वेदा से जल्दी सॉल्व हो सकती है या फार्मेसी? देखो ये ना, जब ये लड़ाई हुई थी तो मैंने बार बार बोला है, ये नमिता और मेरी लड़ाई नहीं थी, ये फार्मा वर्सेस आयुर्वेदा की लड़ाई थी. फार्मा वर्सेस आयुर्वेदा ही था. हाँ, बट एक चीज जरूर है कि उस समय मैं अपने आप को ये दोष तो दूंगा कि मैं समझा नहीं पाया. और लाइफ में एक आदमी को हमेशा इतना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योर शुड हैव द स्ट्रेंथ टू से दैट आई मेस्ड अप, राइट? और मैं नहीं समझा पाया. बट आज बिकॉज यू आस्क्ड दिस एंड आई हैव थैंक गॉड दैट आई हैव गॉटन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू टॉक अबाउट इट नाउ एंड इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. बट टुडे वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव क्लिनिकल ट्रायल्स. Today we are doing a lot of things that are scientifically, clinically proven with evidence, hard facts, digits, numbers. आज मुझसे कोई पूछता है कि आपका अश्वगंधा अच्छा क्यों है, तो मैं बोलता हूं बिकॉज उसके अंदर विदिनॉलॉइड और विदाफरिन जो उनके बायोएक्टिव कंपाउंड है उसका इतना परसेंटेज है. बट डज दैट मेक माई आयुर्वेदा बेटर? नो. See, my point is our obsession in India is with results, right? मुझको ये खाते ही रिजल्ट हो जाए. ये शैम्पू, हमारे यहाँ पे शैम्पू का नाम होता है क्लीन एंड क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर एंड ऑल ऑफ दिस, राइट? और जो भी नाम, क्लिनिक प्लस, मेक योर हेयर स्ट्रॉन्गर, नो हेयर फॉल, हम लोग बचपन से ये देख रहे हैं. They are just claiming. Exactly. Like एक बार डेटोल के ऊपर भी आई थिंक एज मच एज आई रिमेम्बर केस हुआ था. लाइक जब वो 100% जर्म्स, एग्जैक्टली, तो वो 99.9 दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो कहने का मतलब ये कि हम लोग हमेशा से रिजल्ट ओरिएंटेड रहे और इसीलिए मार्केटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड रही है. एंड नॉट ओनली इंडिया, यूएस भी, राइट? एक टाइम था जब डेंटिस्ट रिकमेंडेड सिगरेट्स होते थे अर्ली 40s 50s में. यस, कि इस सिगरेट से कम प्लेग होगा दांत में. कैन यू बिलीव दैट? तो FDA ने बाद में बोला कि आप ये नहीं क्लेम कर सकते. तो फिर बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन एवेन्यू का एपिसोड है उसके ऊपर. तो मेरे कहने का मतलब ये कि वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, इसीलिए ब्रांड्स आर क्लेम ओरिएंटेड. नाउ लेट्स गो बैक अ मिनट एंड टॉक अबाउट द कस्टमर. आई हैव कस्टमर्स हु डोंट वांट इमीडिएट रिजल्ट्स. आई हैव कस्टमर्स हु से दैट अश्वगंधा एक फूड है, एक तरह का हर्ब है, हम उसको खाएंगे और जो होता है हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है. और वो कस्टमर सुखम के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं और उन कस्टमर्स को हर तरह का साइंस भी देते हैं हम उनकी इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बट वो कस्टमर ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आ रहा कि इसको खाते ही हो जाएगा. तो कस्टमर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके ब्रांड के पास नहीं आएंगे तो ब्रांड के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि वो अनरियलिस्टिक क्लेम करें, रिजल्ट्स भी क्लेम करें. दे तो कोई नहीं पा रहा. हम लोगों को पूरा माइंडसेट बदलना है. And this is what Sukham is doing. And that is why we are facing
issues when we talk to other people. But मेरे customers मुझसे बहुत खुश है. We're one of the fastest growing brands in the country. Because मैं उन लोगों से ही बात करता हूं जिन लोगों को मैं बोलता हूं भाई तेरे को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का साइंस समझ, ये समझ कि प्रोडक्ट को इतने समय तक खाना पड़ेगा और सबसे अच्छा डिलीवरी मेथड है इस प्रोडक्ट का, और अब तू इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर. इससे एक्सपेक्टेशन मत बना, इससे ये चीजें हो सकती है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स आई हुई है. अगर इनमें से किसी प्रॉब्लम को तू फेस कर रहा है तो तू ले ले. फॉर एग्जांपल किसी को बहुत स्ट्रेस होता है तो मैं उसको अश्वगंधा रेकमेंड करता हूं, पर मैं ये नहीं बोलता कि भाई थेरेपी छोड़ दे आज ही जितनी चीजें खा रहा है सब छोड़ दे, अश्वगंधा इकलौता सब कुछ कर देगा. नहीं करेगा. आपको जो प्रोटोकॉल आपके डॉक्टर्स ने दिया आप उसको फॉलो करिए. आप साथ में अश्वगंधा भी लीजिए. अगर आपको बेहतर महसूस होने लगता है तो आप धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो जाइए वहां से. और जरूरी नहीं है कि तुम्हें बीमारी होना पड़ेगा ये सब कंज्यूम करने के लिए. आप हेल्दी हो तब भी खाओ यार. सेकंड पॉइंट, इट्स आयुर्वेदा. इफ यू आर हैविंग इट, वो कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा ही नहीं आपको. सेकंड पॉइंट, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट. अगर आपके पास कोई, आप स्वस्थ हो तब भी खाओ. देखो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट इज ऑल्सो अ क्लेम. इट मे हैव साइड इफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद में 3 प्रकृतियां होती है. देखो मैं बहुत ही कैंडिडली आपको सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपके चैनल के थ्रू हम कंज्यूमर्स को एडुकेट कर पाए. ये बहुत सही बात बोली आपने कि यस अगर आपको प्रॉब्लम भी नहीं तो आप आयुर्वेदा कंज्यूम कर सकते हैं. छोटी सी बात, हल्दी नहीं खाते, आयुर्वेद का बहुत बड़ा पार्ट है. एग्जैक्टली. कई सारे हर्ब्स एंड मिनरल्स एंड स्पाइसेस जो हम खाते हैं वो आयुर्वेद का बहुत बड़ा पार्ट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स. हर बॉडी का एक टाइप होता है. किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की वाता प्रकृति है, किसी की कफा प्रकृति है. ये तीनों बॉडी टाइप्स हैं और दोषाज हैं आयुर्वेद में. अब हर दोष के हिसाब से उनको सर्टेन चीजें करनी होती है. अगर एक पित्त प्रकृति का आदमी जिसके अंदर हीट ज्यादा है, जिसकी बॉडी गर्म रहती है, जिसकी बॉडी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कर रही है, जिसकी बॉडी में हमेशा एक सर्टेन टेम्परेचर रहता है. फॉर एग्जांपल मेरा पल्स रेट हर समय 120-22 रहता है. नॉर्मल आदमी के लिए 120-22 बीमार का पल्स रेट है. लोग बोलते हैं कार्डियक चेक करा, भाई मेरा कभी नहीं कुछ हुआ, बट मेरा है ही नॉर्मल उतना. इट्स नेचुरल बॉडी. मेरा बॉडी टाइप है कि मैं एग्रेसिव हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है, मेरे को खाना खाते ही तुरंत भूख लग जाती है, हाई ऑन एनर्जी है. अब मैं अगर पित्त प्रकृति के बाद शिलाजीत कंज्यूम कर ही जा रहा हूँ गर्मी में, तो मुझे गर्मी तो करेगा ही. बिल्कुल करेगा. तो आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट है. बट आपको अपना बॉडी देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, शरीर की सुनो और फिर अपने वैद्य की सुनो या अपने डॉक्टर की सुनो और किसी की मत सुनो. Know yourself, go to the doctor, tell him everything about you, whatever he says. इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर लिया ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक छोटा सा बात बताऊंगा इसको सम करने के लिए. हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं डॉक्टर्स. इट इज बेस्ड ऑन हिपोक्रेटिस who so called the father of modern medicine. Right. उनकी एक बड़ी ब्यूटीफुल लाइन थी. It is not the kind of disease that concerns me. It is the kind of person that has the disease that concerns me. Right. किस आदमी को ये बीमारी है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है इससे कि उसकी किसी भी आदमी को किस तरह की बीमारी है. क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने विल पावर से कैंसर से जीत के वापस आ जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बेसिक कोविड में बिकॉज ऑफ नो विल पावर एंड बिकॉज ऑफ फियर चल बसे. अभी आपने कैंसर की बात की, इससे एक बहुत ही अच्छी चीज़ याद आई कि लाइक वी हैव वन क्रिकेटर लाइक सिद्धू पाजी जो कि अभी नहीं क्रिकेट नहीं खेलते. उनकी वाइफ ने रिकवरी की है जस्ट विद द आयुर्वेदिक हर्ब्स, आयुर्वेदिक फूड, नेचुरल वेजिटेबल्स. कच्ची हल्दी इज द मेन सोर्स, इज सेड, किनोआ इज द सोर्स. तो उन्होंने नेचुरल चीज़ों से अपने आप को रिकवर किया है रादर देन फार्मेसी. फार्मासिस्ट ने तो सबने हाथ खड़े कर ही दिए थे ना. यस. सो मेरा ये मानना है, देखो किसी भी डिजीज को आते ही 2 चीजें सोचना चाहिए. अभी हम किस स्टेज पर है. अगर एसओएस है, एसओएस मतलब इमरजेंसी है, तो तुरंत मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाओ और पहले जो सिम्टम अनमैनेजेबल है उसको सॉल्व करो. जैसे ही वो अनमैनेजेबल सिम्टम मैनेजेबल हो गया, तुरंत आयुर्वेद के पास आ जाओ और अब कोर रूट पे काम करो, रूट कॉज पे काम करो. हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है. एग्जैक्टली लाइक कि जब मैं सुबह उठा, मैंने सुबह उठते ही बजरंग बाण सुना, फिर मैंने हनुमान चालीसा सुना, फिर मैंने 4 एमिनेम के गाने सुने, फिर मैंने फुल हिप हॉप कपड़े पहने, भगवान जी के नीम करोड़ी के हाथ जोड़े, मैं बाहर निकला. इस पूरी प्रक्रिया में मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न का एक बैलेंस के साथ अपने आप को, राइट, दैट इज द न्यू मैन. द मॉडर्न मैन इज द mysticism of the east and the technology of the west. Similarly, the modern science of health
or the modern medicine has to be the integration of the east and the west both, so that we are able to manage both the symptoms and the core issues. Perfect. Like, apart from this, let's talk about what are the major factors that affect men's sexual wellness. Sure. So बहुत चीजें हैं गायत्री, मैं तुमको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ. मैं ऊपर से नीचे आता हूँ. ठीक है. सबसे पहले है ब्रेन. अब ये ब्रेन क्या कंज्यूम करता है? वो इन आंखों से करता है, इस कान से करता है, और समझता है, इंटरप्रेट करता है, और उसको फिर एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट करता है. सबसे पहले जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उस पे एक मोहर होनी चाहिए कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या नहीं. मैं ये नहीं कहता पॉर्न मत देखो. इट इज अ वेल एक्सेप्टेड क्राफ्ट, एवरीवन वॉचेस पॉर्न, बट when we are watching a movie with Amitabh Bachchan fighting with 20 people and we go down and fight with 20 people, हम गधे हैं ना? बिल्कुल है. क्योंकि हमने भाई जो मूवी में देखा वही करना है. वो तो एक ड्रामा है. Similar, pornography is a form of art. हर जो चीज वहां हो रही है जरूरी नहीं कि आपने भी करनी है. Right. हर वो चीज जो वहां हो रही है जरूरी नहीं कि उसको सच मान लेना है. जैसे एक मूवी सच नहीं होती, वैसे एक ये भी सच नहीं होता. राइट? बहुत. और जितनी देर के लिए वहां दिखाया जा रहा है, that doesn't mean कि आपको उतनी देर करना है. Exactly. और बहुत सारी चीजें जो वहां पर हो रही है, जिससे इंजरीज होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, वो जरूरी नहीं कि आपको भी अपने लाइफ में करना है. तो पहले तो जब आप कंज्यूम कर रहे हो, नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, नो दैट इट्स अ क्राफ्ट, एंड नो दैट इट इज supposed to be watched for entertainment only. Second, take good care of your mind also, because stress is the biggest factor for anything. अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपका मेंटल वेलनेस सही नहीं है, अगर आपका मेंटल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी हैम्पर हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, इट इज गोइंग टू मेस यू अप फॉर श्योर. तो सेक्सुअली ही नहीं, हर तरह से. स्ट्रेस कार्डियक हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम होता है. स्ट्रेस की वजह से लोगों को हाइपरवेंटिलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से उनको इवेंचुअली रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगते हैं. स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी होता है. स्ट्रेस की वजह से आप ओवर ईट करते हो. स्ट्रेस की वजह से आप अंडर ईट करते हो, खाना छोड़ देते हो. स्ट्रेस की वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है. राइट? एंड देन ये सारी प्रोसेस बिगड़ने के बाद वो हमारा जाके सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट करता है. यस, एग्जैक्टली माय पॉइंट. तो सब कहां से हुआ? रूट इज एग्जैक्टली, रूट इज द माइंड. सेकंड, हमारा दिनचर्या जो हम पूरे दिन करते हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए. ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ओवर कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग, ओवर कंजम्पशन ऑफ tobacco, overconsumption of any narcotics will lead to sexual health issues, will lead to any issue, right? कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि इसके वजह से बस सेक्सुअल हेल्थ ही खराब होगा. उसकी वजह से लाइफ में बहुत चीजें खराब हो सकती है. आप समझो इसको. तो इन चीजों को भी हमको वी हैव टू बैलेंस ऑल ऑफ इट. राइट? और बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग? बैलेंस ऐसे करेंगे कि हम लोग अपने आप को उस ऑप्टिमम डोजेज पे ले आएंगे हर चीज के, कि हम सारी चीजें एंजॉय कर सके, और हम वो उस पॉइंट के बियॉन्ड ना करें ताकि हम लाइफ भी जी रहे. राइट? और बीमारी भी ना ले. मैं ये नहीं बोलता कि जो अल्कोहल पी रहे हैं अल्कोहल खराब है. राइट? इवन आई कंज्यूम अल्कोहल एट टाइम्स. ठीक है, मैं भी शराब पीता हूँ, बियर पीता हूँ. आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स, चिल. But I think there are two types of alcoholic persons. That's what I'm saying. जो एक पार्टी में या फ्रेंड्स के साथ पी लेते हैं, like within a month और वीक में एक बार. And there are some person जो कि हर रात को पीते हैं. वही ना, दिन में भी पीते हैं और फिर रात को शायद शाम को घर जाने में भी उनके पैर इधर उधर हो रहे हैं. Exactly. So वही. तो फिर वो कंजम्पशन का जो ऑप्टिमम डोजेज है उसको आपने क्रॉस कर दिया. ये देखो ना, आपकी बॉडी कितना बेयर कर सकती है. Exactly. तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है हर चीज में. राइट? ठीक है, कंजम्पशन हो गया. तीसरा, किसी भी तो दिनचर्या दूसरा बहुत बड़ा पार्ट है. पहला हो गया मेंटल हेल्थ, दूसरा हो गया दिनचर्या, तीसरा हो गया आप के हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. मुझे ऐसा लगता है एक आदमी जो बेसिक एक्सरसाइज करता है, खाना खा के आधा घंटा वॉक कर लेता है, दिन में 1 घंटा जिम कर लेता है या बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लेता है, और अच्छा खा लेता है, बेसिक करता है सारे काम जो उसको करने चाहिए, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेता, और स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी बेसिक वीकेंड्स पे कर लेता है लिमिट में,
उस आदमी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो ठीक ठाक चल रहा होता है। उसको स्ट्रेस कौन खुद से लेता है? स्ट्रेस तो खुद आता है। नहीं यार, खुद लिया जाता है। चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस आप बनाते हो। स्ट्रेस हम बनाते हैं, वी कैन से दैट कि चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस मैं स्ट्रेस का आपको साइंस समझा दूं आज? हमारी बॉडी में even my reports also say that I am taking stress, so I would love to sure know so about तू this. कॉर्टिसोल एडिक्टेड है फिर ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि हमारा किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो बनाता है। राइट। अब कॉर्टिसोल जैसे ही बढ़ता है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ता क्यों है? कॉर्टिसोल बढ़ता है n नंबर ऑफ फैक्टर्स से। सबसे बड़ा फैक्टर है सडन चेंज इन लाइफ। किसी का डेथ हो जाना, किसी का पैदा हो जाना। पेरेंट्स स्ट्रेस में नहीं होते, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होते बिकॉज ऑफ द किड। कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज है उनकी लाइफ में, उन्हें एक नॉर्मल इंसान से पेरेंट बना दिया है। उनकी लाइफ में कितनी हैप्पी चीजें हो रही होती है उस समय, पर वो मैक्सिमम स्ट्रेस पे होते हैं उस समय। एक मदर पोस्ट डिलीवरी कितने स्ट्रेस में होती है, बहुत ज्यादा। प्री डिलीवरी कितने स्ट्रेस में होती है। तो स्ट्रेस का तो ये भी है। अब उन चैलेंजेस को आप डील कैसे करते हो? बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बेसिक योगा, बेसिक प्राणायाम। मैं छोटा सा बोलता हूं, बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है, बट मैं दिन में 2 बार बैठकर अपने सांस पे ध्यान जरूर देता हूं कि मेरी सांस कैसी चल रही है। मैं रिवर्स ब्रीदिंग तो नहीं कर रहा, एम आई ब्रीदिंग राइट, मेरी ब्रीदिंग के बीच के इंटरवल्स कितने हैं। और मुझको ये क्रिया योग ने सिखाया। मैंने युक्तेश्वर गिरी जी को पढ़ा, मैंने परमहंस को पढ़ा था, मुझको समझ आया कि अच्छा ये भी होता है, इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। तो चैलेंजेस आएंगे, उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट करना ना हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, और उस पर बैरियर लगाना हमारे माइंड का। हमें मन और बुद्धि दोनों दी है भगवान ने। मन हर चीज को लेके कन्वर्ट कर देगा स्ट्रेस में, क्योंकि मन ओवर कंज्यूम करेगा, मन तो और चाहेगा, राइट। बुद्धि वो लगाम है जिससे हम उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। तो इसके बैलेंस को जिसने समझ लिया, और इसके लिए मेरा ये मानना है कि अ मैन हु इज फिल्ड विद मटीरियल, अ मैन, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? थार। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनते हो, हाँ, खाने पीने को बढ़िया है, हाँ, लाइफ में कोई इशू नहीं है सच तो बिल्कुल भी राइट। फिर किस बात का स्ट्रेस है? अभी आपने बोला स्ट्रेस है, राइट? स्ट्रेस है। I don't know what reports say that. Exactly, because you are converting that into stress, which is right now giving your body certain indicators कि आपको आपके हार्मोन्स उस तरह से मैल हो रहे हैं और आपको आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में है। ओके। अब वो क्यों हो रहा है, उसका इंडिकेटर पता लगाना बहुत जरूरी है। तो बड़े टेस्ट है साइकोलॉजी में, स्ट्रेस इंडिकेटर टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट एक प्रॉपर टेस्ट होता है। आप वो टेस्ट लीजिए, आपको इंडिकेटर्स पता लगेंगे, उस पर काम कीजिए। उस पर काम करने के बहुत तरीके। What you have to do is make sure that you are doing the right thing at the right time. And you need to also know when to reach out to people. कब वो स्ट्रेस एंजाइटी में बदल जाएगा, और फिर वो डिसऑर्डर में बदल जाएगा, और फिर वो पैनिक में बदल जाएगा, और फिर उसके अटैक्स आने लगेंगे, पता नहीं लगेगा। राइट। You getting my point? It is the right, you need to know as a person when is the right time. हम लोग ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं सबसे ज्यादा, इंडियंस तो बहुत ज्यादा। हम में से कोई भी अपने डेंटल हेल्थ को लेके कोई भी रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए नहीं जाता। मेरे को लास्ट डेंटिस्ट के पास गए हुए हो गया 6 साल पर मेरे को जिस दिन दर्द होगा ना मैं उस दिन चला जाऊंगा। हाँ। हमने इंटरवेंशन ही दर्द बना रखा है डेंटल केयर में, प्रायोरिटी नहीं दी लाइफ में उसको। सेम इज आई कैन से कि नॉर्मल कैजुअली कोई नहीं जाता अपने बॉडी चेकअप के लिए। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हम लोग मुश्किल से 5% लोग जाते ब्लड वर्क नहीं कराते यार, हम ब्लड रिपोर्ट्स नहीं कराते, राइट? कराते, बस चल रहे होते हैं। इफ माय बॉडी इज फीलिंग डाउन, वो कई दिन से डाउन फील कर रहे हैं, देन आई वेंट देयर। इंटरवेंशन, राइट, द राइट इंटरवेंशन वी नीड टू नो। तो एज आई वाज सेइंग कि स्ट्रेस आइडेंटिफाई करना, मैनेज, इंटरवीन करना, और फिर मैनेज करना, है तीनों अलग चीजें। तो ये इस पे ध्यान रखना है, इससे सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर सोशल फैक्टर्स भी है यार, ब्रेकअप्स है। 74% ऑफ माय कस्टमर्स हु फील दैट दे हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन डोंट हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दे हैव एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी। उनको गर्लफ्रेंड के आगे या बंदियों के आगे इरेक्शन नहीं आ रहा है बिकॉज वो डरे हुए हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स है। बट एट द टाइम ऑफ मास्टरबेशन पूरा इरेक्शन है, सुबह उठ के मॉर्निंग बोनर है, बट बंदी के सामने बोनर नहीं। क्यों? डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? किसी ने ब्रेकअप करा तो उसके अंदर पहला सवाल ये उठा कि मुझ में कोई कमी होगी। औरतों को कितना बॉडी इश्यूज होते हैं,
हर औरत अपने आप में 200 इश्यूज लेके बैठी है अपने दिमाग में, चाहे वो हो ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मर्द भी ऐसे ही लेके बैठा है, बट औरतें एक्सप्रेस कर देती है, मर्द करता नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना विमेन लिव लॉन्गर, औरतों को हार्ट अटैक कम आता है, बिकॉज वो एक्सप्रेस फिर भी कर देती है, मर्द नहीं करता, राइट? बट मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा, बिकॉज औरतों को और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंड देयर आर डिफरेंट बॉडी टाइप ऑल टुगेदर, और दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट, सो हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तीसरा, हम लोग डॉक्टर्स के पास जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से मिल लिया मैंने उनको जब भी बोला कि सर व्हाट इज दैट वन फैक्टर जिसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम आती है, उन्होंने हमेशा ये बोला है, यार सबसे पहले तो मिस डायग्नोसिस ऑफ एनीथिंग विल कन्वर्ट दैट इनटू अ प्रॉब्लम। तो मिस डायग्नोसिस ऑफ व्हाट? आप खुद क्यों डायग्नोस कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप खुद कोई और बीमारी डायग्नोस करते हो? आप खुद पेट दर्द हो रहा है तो खुद लेके बैठ जाते हो कि अब कि पेट अपना खुद का डायग्नोस कर लूंगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो स्टेथोस्कोप लगा लेते हो अपने कान में, नहीं ना? नहीं। तो जैसे ही कोई सेक्सुअल वेलनेस इशू होता है, गूगल क्यों खोल लेते हो? गूगल पे तो यार देयर आर लॉट्स ऑफ मिसगाइडेंस, बिकॉज़ इट्स अ ओपन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू आर नॉट अ trained expert on how to interpret. But that open source of information is filled with misinformation. वो तो है, मिसइंफॉर्मेशन होता कब है? जब रॉन्ग सोर्स से रॉन्ग रीडर उसको पढ़ ले। Because people upload for the views आने चाहिए, अपलोड एनीथिंग। नहीं गायत्री, आप इसको ऐसे भी समझो कि PubMed है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस, बट PubMed को मैं पढ़ के क्या ही समझूंगा? राइट। मुझे पता ही नहीं PDE5 क्या होता है, तो BDE5 इनहिबिटर खा के मैं क्या कर लूंगा? लोग आज जाके टेडलाफिल, सिल्डेनाफिल, वाइग्रा जैसी चीजें पॉप कर रहे हैं जैसे कि जेम्स हो। भाई कैसे खा लेते हो आप, ये जानने बिना कि वो काम क्या करता है आपके शरीर में? वो PDE5 नाम के एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है और आपको इरेक्शन आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको पता भी नहीं आपने कितनी सारी चीजें बॉडी की हिला दी है। राइट, कि आपकी बॉडी में कितनी सारी चीजें तो मेल फंक्शन हो गई हैं। एग्जैक्टली, और वो उसकी आदत और होती है। सिल्डेनाफिल का एडिक्शन हो जाता है, लोगों को टेडलाफिल का एडिक्शन हो जाता है, वो अलग चीज है। तो मेरे कहने का मतलब है, मिस डायग्नोसिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर और एनी डिसऑर्डर फॉर दैट मैटर। राइट, आई एग्री। सो ये सारी चीजें इसका ख्याल रखें। So Vivek, what is that one mindset which you think that has attributed to your success even after a big failure in your previous business? So यहाँ पर ना, what I would like to say here is that I think failure is the preliminary to success. ये बहुत लोगों ने बोला और तूने सुना भी होगा, और बहुत ज्ञान है इसके बारे में, मैं ज्ञान नहीं दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है, एक चीज होती है स्टार्टअप्स में, हर बिजनेस में, जो बिजनेस तू भी कर रही है, प्रोडक्ट मार्केट फिट। हाँ, राइट, द राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट मार्केट। अगर वो बैठ गया तो फिर तो चल जाता है, राइट, फिर तो सारी हिस्ट्री है। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट की एक स्टोरी बताता हूँ। एक प्रोडक्ट था, कई साल चला मेडिकल वर्ल्ड में, फिर नॉर्मल वर्ल्ड के लिए निकला और कई साल स्ट्रगल किया पर नहीं चला, और फिर एकदम से बहुत ज्यादा चल गया, सैनिटाइजर। राइट, कितने सालों से था मार्केट में, आफ्टर कोरोना उसका कुछ ज्यादा कोविड में पागल ही हो गए लोग। तो उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट का क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट टाइम वाज द फैक्टर जिसने राइट टाइम पे वो हिट हुआ। राइट। अब वो तब तक अगर सर्वाइव ही नहीं करता, तो वो प्रोडक्ट अगर तब तक सर्वाइव ही नहीं करता तो कुछ नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी मिस थी। तो मुझको ऐसा लगता है रेजिलियंस, परसिवियरेंस is the only thing that can build a true business and is the only trait of the businessman that has value. Nice. Resistance and perseverance are the two things which will give you anything when it comes to success. और दूसरी एक चीज है जो मेरे फादर कहते थे, बहुत मेरे को अब वो हिट होता है, is that nothing succeeds like success, when we started Sukham, टचवुड, शुरू करते ही फंडिंग आ गई, साल भर के अंदर शार्क टैंक चले गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने एकदम ही स्केल अप कर लिया, आज दोबारा एक राउंड हो रहा है। राइट। बीच में 3 महीने का भी स्ट्रगल आता है, तो मेरे फाउंडर्स कई बार ऐसे हो जाते हैं कि यार स्ट्रगल है, राइट,
मैं 10 साल से कर रहा हूँ यार ये। मेरे को 10 साल से ये सब करते करते आज मुझको जो फर्स्ट टाइम में शार्क टैंक हो गया ना, वो मेरे फाउंडर्स के लिए प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम में शार्क टैंक हो गया, बट 10 साल से मैंने बहुत कुछ सीखा है वहां तक पहुंचने के लिए, राइट? आपने तो काफी हार के बाद वो जीत हासिल एग्जैक्टली, और मैं बीच बीच में जीता हूँ, मैंने इससे भी बड़ा सक्सेस देखा है। मेरा बास्केटबॉल लीग वाज अ सुपर सक्सेस। आई हैड $3 million इन माय बैंक अकाउंट, ह्यूज मनी। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं था जिसके साथ हम उठते बैठते नहीं थे। आई वाज हैंगिंग आउट विद द हूज एंड हूज, बट अगेन इट ऑल फेल डाउन लाइक दिस। तो मेरी लाइफ हमेशा साइनोसोडल रही है, एंड दैट इज, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ ऐसी रही है। टोटली रोलर कोस्टर। या बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि गॉड हैज ऑलवेज गिवन मी सम सक्सेस एंड देन टोल्ड मी दैट ब्रो दिस इज वेयर यू लैक, नाउ बिल्ड दिस स्किल। फिर सक्सेस दिया, फिर दिस इज द स्किल। सो दिस टाइम आई डोंट वांट टू फॉल डाउन, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइम आई एम फोकसिंग ऑन माय कोर स्किल्स एंड माय टीम्स कोर स्किल्स मोर देन द माइलस्टोन्स दैट वी आर अचीविंग, राइट? हम लोगों ने बहुत माइलस्टोन्स अचीव किए। हम लोगों के पास आज एक अपना हब प्रोसेसिंग टेक्निक है सुखम के अंदर, जो कि इंडिया में बहुत ही मुश्किल होता है बनाना। एक आईपी बनाई है हमने। आज हमारे पास सुखम के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़े बड़े विन्स हैं, बट हम लोग उसको ज़्यादा भाव नहीं देते यार, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये सब वक्त है, ये बदल जाएगा। बट रेजिलियंस बहुत है हमारे में, हम बहुत ही ज़्यादा टिक के काम कर सकते हैं। सो मेरे को अगर कोई बोलेगा ना व्हाट इज़ योर राइट टू विन, तो मैं बोलूँगा माई राइट टू विन इज दैट आई हैव अ वेरी वंडरफुल टीम, एंड माई राइट टू विन इज दैट आई कैन, and when I say I'm talking about Sukham, I'm representing Sukham. Sukham की जो पूरी टीम है, that can work for hours and hours without even flinching, So yeah, I think resilience is something, and just to give you one more example, shout out to my brother Dhruv Basin. कल रात को मैंने न्यूज़ देखा कि आज अराता ने 4 मिलियन की फंडिंग उठाई, और मैंने ध्रुव को मैसेज किया और मैंने उसको यही लिखा, मैंने बोला ब्रो 2017 में शुरू किया था, आज 2024 में तू सीरीज ए कर रहा है, 7 साल में तेरी भी लाइफ साइनोसोडल रही है। नहीं, ध्रुव भसीन एंड ध्रुव मधोक, ये 2 फाउंडर्स हैं अराता के, हमारे सीजन में थे शार्क टैंक के। परफेक्ट। और क्या क्या क्रेजी स्टोरी है उनकी, मतलब बहुत पैसा उठाया, बहुत पैसा जला दिया अपने थीसिस में बेचारों ने। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। एग्जैक्टली। फिर दोबारा और आज 4 मिलियन का राउंड रेज करा है। लाइक इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट राउंड एंड अ परफेक्ट स्टोरी एंड एवरीवन इज नाउ अपलॉडिंग देम, बट आई नो द रेजिलियंस एंड आई नो द परसिवियरेंस दैट दीस गाइज हैव and what they've shown behind that. Congratulations, Dhruv. I don't know you, but yes. Yeah. I'm so happy for probably your you should call him for the next podcast. I'll connect Perfect. you. So Dhruv, आप next podcast में आ रहे हो। So he's a superb guy and shout out to him यार। बस मैं वही बोलूँगा कि if someone has to learn something from someone, learn resilience and perseverance from both the Dhruvs of Arata. I think beautiful guys, beautiful entrepreneurs. मैं अपनी ऑडियंस के लिए परफेक्ट, आप बोल रहे हो कि इतना अच्छा उनकी जर्नी है, तो मैं अपनी ऑडियंस को वो जरूर डिलीवर करना चाहूंगी। 100%। एंड इनके प्रोडक्ट्स भी यार, तो दे आर आल्सो बिल्डिंग अ वेरी गुड ब्रांड व्हिच इज a mix of modern science and Ayurveda also and natural also. So before entering into entrepreneurship, आपने एक बास्केटबॉल लीग को एस्टैब्लिश किया था। वो भी entrepreneurship ही था। वो भी entrepreneurship वो भी एक मेरा VC फंड। And how you established it? यार हुआ क्या कि मेरे को जब ऐसा लगा कि मुझको बहुत कुछ आ गया लाइफ में और काफी धक्के खा लिए थे, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और किसी ने एक दिन रैंडमली मेरे को कॉल किया और बोला कि यार एक ऐसे करके बंदा लीग शुरू कर रहा है, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? एंड ही वाज नो वन बट माय एक्स को-फाउंडर सुधीर, हु इज आल्सो लाइक अ ब्रदर टू मी। शाउट आउट टू सुधीर, एंड ही इज राइट नाउ रनिंग अ कंपनी कॉल्ड जैगरी कंसल्टिंग, बहुत बढ़िया कर रहा है वो भी। बट उसने मेरे को बोला कि यार ऐसे हम लोग लीग कर रहे हैं, करेगा? एंड फिर हमने वो लीग शुरू किया, एंड फिर वो लीग हमने काफ़ी अच्छा स्केल कर लिया। वी रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द जापानीज इन्वेस्टर्स एंड देन ट्रैवल्ड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट लीग। बहुत पैसा बनाया यार, बहुत पैसा बनाया, मतलब लिटरली। बट फिर अगेन हमको बहुत सारे मिस्टेक्स वी डिड एज एन एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी लर्निंग मिली, एग्जिट लिया वहाँ से। फिर उसके बाद एक दिन हम लोग शराब वराब पी के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और एकदम से आवाज़ आई सामने से कि भाई विवेक, और मैंने देखा तो रणविजय था। एंड वी मेट एंड आई नो रन भाई फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फिर हम लोग मिले। फिर उसने बोला भाई मैं स्ट्रीट बॉल लीग कर रहा हूँ, व्हाई डोंट यू कम डाउन एंड चेक अस आउट। तो मैं वीवर्क गया, उन लोगों का लॉन्च पार्टी था, तो वहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज आए हुए थे जो टीम्स ले रहे थे। ओके। सना खान, मेलविन लुइस, वरुण सूद, कृष्णा श्रॉफ, टाइगर की बहन, ईशा इबान, ये सारे बहुत लोग थे। तो और बहुत सारे लोग को मैं जानता भी था वहाँ पे ऑलरेडी। तो
तो वहाँ पे रणवीर जी ने बोला कि व्हाई डोंट यू एंड सुधीर टेक दिस टीम. फिर हमने वहाँ पे वो टीम लीड एंड इवेंचुअली वी बिकेम अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट बॉल. And now we've done 3 seasons of street ball. Probably next year we'll do 1 more season. This is how hard work pays off. Like Yeah, you yeah. suddenly got an opportunity Yeah. and it was like कि यहाँ थे आप एकदम से यहाँ पहुँच गए. Yeah, I think वही perseverance, you know. Entrepreneurship, what I believe is entrepreneurship is very unpredictable. Yeah. Very unpredictable. Like you don't know when you are going to be down and suddenly when you will go. And it is for people who love that. मुझे वो जर्नी बहुत पसंद है यार. मुझको आज Adventurous person can only survive in entrepreneurship. Because मेरे को ऐसा लगता है कि यार हर entrepreneur शाहरुख खान है अपने मन में, right? और उसके पास वो हाथ फैलाते हैं रिस्क को के रिस्क आ जाओ, we are welcoming you. So मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास है वो ability कि आप उसमें हंसते हुए नेविगेट. कल ही मैंने अपने ग्रुप पे मैसेज करा अपने को फाउंडर्स को कि हंस के अगर नेविगेट कर सकते हो ना सारे प्रॉब्लम्स के बीच से तो ही कूदो, वरना कूदो मत, राइट? मुझे बहुत मजा आता है. हाँ, ऐसा नहीं मैं स्ट्रेस नहीं होता. अब आई थिंक मैंने एक चीज तो क्रैक कर लिया, वो ये कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस. और वो अपने आप में मेरे को लगता है मैंने काफी बड़ी चीज, ये चीज तो बहुत लोगों को सीखनी है. हाँ, मेरे को लगता है मैंने वो क्रैक कर लिया. बाकी मैंने कुछ क्रैक किया हो ना किया हो, डजंट मैटर. बट येस, आई मीट सो मेनी फाउंडर्स, यू नो, कंसल्ट सो मेनी फाउंडर्स. बहुत ऐसे फाउंडर्स हैं. मेरी कंसल्ट की भी 4 से 5 कंपनीज अभी शार्क टैंक जा रही है इस बार, राइट? और मैं उनके साथ भी बैठता हूँ, उनके पिच भी बनाता हूँ, कंसल्ट भी करता हूँ फॉर फ्री, यू नो, बिकॉज आई लव डूइंग दिस एज अ पर्सन. मुझे अच्छा लगता है. एंड इफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, you know, through this podcast, anyone needs any help, go reach out. It's me only. Yeah, मेरे को LinkedIn पे आओ और बात करो, I'm there. But मुझको ऐसा लगता है कि ये सब करके if you, अगर मैंने कुछ हेल्प, बट मैं ऐसा क्यों करता हूँ और कर पाता हूँ, बिकॉज जो मैं कर रहा हूँ ना वो बहुत लोग मेरे लिए भी कर रहे हैं. आज बहुत ऐसे फाउंडर्स हैं जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, यू नो. शाउट आउट टू अ फ्यू पीपल. there's this guy called Prakhar from so he just sold his company to Snapdeal, now runs his own company. Again नया build कर रहा है, raise decent money. तो प्रखर बहुत हेल्प करता है मेरी. Then you know, Ganesh helps me a lot, who's the founder of MyFreedo. Randomly call कर लेता है, update ले लेता है. आज ही सुबह उनका फोन आया कि भाई क्या चल रहा है, थोड़ा update दे. How sweet. Like, yeah, I think I really love these kind of person. Like they are so kind. Like see what इन्हीं चीजों से आप पता लगा सकते हो, like what kind of people they are. And what I believe in is कि अगर आप authentic हो और आपका दिल सही है ना, तो आपके आसपास लोग भी वैसे ही होंगे. So मेरे को कल ही किसी ने पूछा, मैंने कल किसी की कुछ बहुत 2-3 चीज़ों में मदद कर दी, और उसने मेरे से पूछा, एंड ही वाज अ यंग लैड, 23-24 ईयर ओल्ड. तो उसने मेरे से पूछा, यार क्यों करा आपने ये सब मेरे लिए? तो मैंने बोला, यार मैंने ये सब इसलिए करा तेरे लिए बिकॉज मुझको तेरे में ना थोड़ा सा मैं दिखा, यंगर वर्जन ऑफ मी, राइट? और मेरे को लगता है कि उन बंदों को मुझ में वो दिखते हैं. तो इट इज लाइक अ, यू नो, an entrepreneur wants to support an entrepreneur, then wants to support, and that is why entrepreneurship is growing so fast, because we are all in this ecosystem to support each other. कुछ है जो leg pulling करते हैं, कुछ है जो, बट वो तो 5% वैसे हर जगह ही होते हैं ना. घर का तो हमारे रिश्तेदारों में भी 5% लोग गधे ही है ना, राइट? सो तो उन पे ध्यान नहीं देने का. आई थिंक नहीं, जब आधी जिंदगी आपकी सवर जाती है जब आपके रिश्तेदार अच्छे होते हैं. या तो मैं तो बोलूंगा कि यार तुम, या आपको, एज आई सेड, यू हैव टू लर्न हाउ टू नेविगेट इन दीस सिचुएशंस. सो राइट. So that's one mindset, perseverance, and you know, I think the ability to navigate in stressful times. That's right. अच्छा, एक बहुत ही beautiful सा question है. I don't know whether you found it silly or not. Yeah. But yes, we women want justice. From like I am talking on behalf of thousands of women. Yeah. Like आपने शार्क टैंक गए, आप और भी बहुत जगह जाते हो और अपनी ब्रांड को, सुखम को रिप्रेजेंट करते हो एज अ मेन सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड. Why not women? Do you think that women don't face sexual problems? नहीं. So ये बहुत ही justified सवाल है, और मेरी सारी बहनें और मेरी सारी दोस्तों के लिए who are out there whom I would really want to help. मैं honestly ये बोलूँगा कि that you know, हम लोग जब सुखम बना रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि ज्यादा प्रताड़ित कौन है ना? तो मुझको, और एक बहुत अच्छी चीज हुई है दैट इन द लास्ट 10 years women's sexual health and wellness
बी इट प्लेजर ऑल्सो. आज इतने मसाजर्स के ब्रांड्स हैं, यू नो, माइम्यूज है, brands are openly selling massagers, vibrators for women because it is high time that you also acknowledge कि भाई a woman also has a certain need, right? और उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्रोडक्ट बनाना उतना ही जरूरी है जितना एक मर्द के लिए. तो सिमिलरली मर्दों के लिए प्लेजर में आज विमेन के लिए बहुत ऑप्शंस है, और उनके लिए गायनोवेदा जैसी कंपनीज है जो पीसीओएस पीसीओडी को बहुत टैकल कर रही हैं. बट मर्दों के लिए उस समय जब मैं ये कंपनी बना रहा था तो कुछ था नहीं, right. तो मुझको वाइट स्पेस ना मर्दों में दिखा. So you are feeling that void? Yeah, but now I think हम लोग women भी करेंगे. तो very soon I'm going to launch a new women's sexual wellness company which is not going to be about pleasure. Okay, हम जीत गए. Yeah, but it is not going to be about pleasure. Yeah. It is not. I am not going to create more vibrators for women because those companies are out there. They're doing a good job. Kudos to you guys, but I'm not doing it. I wanna talk about things like PCOS. I want to talk about things like PCOD. I want to talk about things like infertility. I want to solve the problem which exists. Exactly, which is actually affecting their health and not only pleasure, right? तो मैं हमेशा सुखम में बोलता हूँ, सुखम is for the needy and the greedy. पर विमेन के लिए प्रोबेबली हम पहले नीडी मार्केट में जाएंगे फिर ग्रीडी में जाएंगे, राइट? तो नीडी मार्केट, ग्रीडी तो आई थिंक बहुत क्राउडेड मार्केट है भी. मैं विमेन के लिए आयरन डेफिशिएंसी है बहुत. इंडिया में इतनी औरतों को है, डेटा कुछ पढ़ रहा था मैं, 80% प्लस औरतों को आयरन डेफिशिएंसी एक सर्टेन एज ग्रुप में. भाई वो सॉल्व करूंगा ना. कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं वो सॉल्व करूंगा ना. I'll share my reports with you. 100%. We have a board of 7 beautiful doctors. They'll go through it and help you. ऐसा नहीं, आज भी if some woman comes down to us and asks, for example, अब हमारे जो products हैं अश्वगंधा, शिलाजीत, मैं औरतों को बोल रहा हूँ कि भाई खाओ. इनफैक्ट अभी मेरे को रियलाइज हुआ जब से हमने नए शिलाजीत ड्रॉप्स निकाले, a lot of women are taking these drops for their period health. Right. A lot of women are taking my ashwagandha drops for their stress, right? So, in fact, you should also try it. I'll make sure that you also I'll get one. I'll definitely try. हाँ, I'm going to send ship one bottle. मुझे दवाइयाँ नहीं पसंद, मैं आयुर्वेद से नहीं, but वो तो मेरा ड्रॉप्स है ना, तो जिनको दवाइयाँ नहीं पसंद वो भी खा सकते हैं, राइट? So मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार हमको ये गैप भी फिल करना है, और आज एक बहुत बड़ा गैप है कि उस मार्केट में वापस से प्लेजर को, बिकॉज वो बहुत ही टिटिलेटिंग और सेंसिटाइजिंग टॉपिक है, उसको ध्यान दिया जा रहा है, और एक्चुअल कोर प्रॉब्लम जो है विमेन सेक्सुअल हेल्थ, वेलनेस और प्लेजर नहीं, हेल्थ, वो नेग्लेक्टेड है आज. तो वेरी सून सुगम इज गोना कम फॉर विमेन एज वेल, एंड आई थिंक दैट कंपनी हैज that vertical of the company will have a much better future than men, और हम उसमें और बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि दो चीजें हैं यार. women accept everything. Yeah. They are more empathetic, they are more accepting, and second, women also recommend. आज तक मेरे सुखम में 1 लाख कस्टमर हो गए, पर शायद 20 ऐसे कस्टमर हो गए जिन्होंने आगे मुझे रेकमेंड किया, क्योंकि मर्द इस बारे में बात ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं सुखम खा रहा हूँ. करेगा ही नहीं, 110%. बट औरतें जरूर करेंगी. Like like if I talk about a woman, I can say that कि अगर if I am facing any problem, I can discuss it with any girl. Exactly. और not only that, मान ले तेरे को कोई किसी टाइम पे कोई इशू हुआ और तू किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई और उसने तेरा वो इशू सॉल्व कर दिया, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट टू मेक श्योर करेगी तेरे दोस्त को भी रेकमेंड कर दे. Right. मर्द कभी नहीं करेगा. तो इसलिए मुझे लगता है कि माई चांसेस ऑफ creating a much bigger impact in the women's category is higher. So I can say that सुखम की जो मार्केट है ना, टारगेट ऑडियंस है, वो बहुत बड़ी है. Yes. बट वो ना छुपी हुई है. Yes. वो अपने घरों में छुपे रहते हैं, या वो सड़क पे होते हैं, वो छुपे होते हैं. They never reveal it that we are suffering from something. Yes. बट जब तक आप उसको confront नहीं करोगे ना, तब तक आप उसको हील भी नहीं कर पाओगे. True. Somewhere or somehow आप उसको स्ट्रेस दे के और ज्यादा बड़ा बना रहे हो. Yes. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुखम तभी सक्सेसफुल होगा when the brand will be a beautiful listener also and not only a good orator. एंड ब्रांड को एक बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स को, सो दैट दे कैन डिस्कस इट. लाइक अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ पॉडकास्ट करने के लिए, कभी आपका एक पेशेंट बैठा होगा कि यार मेरी ये प्रॉब्लम थी, तूने ठीक किया, तू सब है. 100%. तो आज बहुत मेरे पास 8,000 10,000 ऐसे कस्टमर्स होंगे, ज्यादा ही होंगे शायद, जो ये क्लेम करते हैं कि यार सुखम खाने के बाद हमारा बच्चा हो गया. हाँ. एंड सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. मेरे साथ अभी हुआ एक इवेंट पे मैं था, स्टार्टअप का इवेंट था, रेजर पे वालों का था. वहाँ पे 2 बंदे ऐसे मिले जो मेरी कम्युनिटी के, स्टार्टअप कम्युनिटी के, और उन्होंने आके मेरे को बोला, ब्रो योर प्रोडक्ट्स हेल्प मी कंसीव अ बेबी.
एंड आई वाज ब्लोन ब्रो, और मैं और मेरे फाउंडर दोनों थे वहाँ पे, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, because I think that is the larger This goal. is the real success of a brand, na? True. When a true compliment came from a true client. True. You are not like, there are lots of brands who are paying to the customers for the paid reviews, Yeah. for the paid video reviews, like वो social मेरे को भी media एक इन्वेस्टर का फोन है कुछ दिनों पहले, उन्होंने बोला यार तेरे Amazon पे रिव्यूज बड़े कम है, 19-20 रिव्यू है प्रोडक्ट के यार, हम तू paid नहीं लेते ना। हाँ तू बढ़ाता क्यों नहीं है इसको? मैंने बोला बढ़ाऊं क्यों यार, मैं अगर प्रोडक्ट के रिव्यू जबरदस्ती बढ़ा रहा हूँ तो मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है वो पुश होने वाला प्रोडक्ट हो गया, विच मीन्स कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट को जरूरत नहीं है। 19 रिव्यू है क्योंकि मर्द रिव्यू नहीं डालता है, वो ओपनली क्लेम नहीं करता है, फिर भी 19 है बहुत बड़ी बात है सर। वॉल्यूम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, वो तो मुझको पता है ना मैं क्या वॉल्यूम कर रहा हूँ, तो मैं कब रखूंगा पर ओरिजिनल रखूंगा, जेन्युइन रखूंगा, क्योंकि ब्रांड की ऑथेंटिसिटी ही उसको कस्टमर के हार्ट में ट्रांसेंड करेगी। तो सुखम का जो ब्रांड है, अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स पे बात करूँ तो इसका मेजर डोमेन प्रोडक्ट क्या है? शिलाजीत? नहीं, इसके 3 कैटेगरीज है। ओके। पहला कैटेगरी है पॉली हर्बल। तो पॉली हर्बल कैटेगरी में, पॉली हर्बल का मतलब होता है कई सारे हर्ब्स का मिक्स। ओके। तो वो कैटेगरी में वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे हर्बल पावर बूस्टर है, वो एक आयुर्वेदिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। हर्बल परफॉर्मेंस बूस्टर है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में ज्यादा अच्छा काम करता है। मेल फर्टिलिटी है जो कि फर्टिलिटी के इश्यूज के लिए है। फिर है सिंगल हर्ब प्रोडक्ट। सिंगल हर्ब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स है जैसे अश्वगंधा, ट्रिबिलस विच इज गोक्षुरा, शिलाजीत। तो वो ऐसे हर्ब्स है जो सिंगल हर्ब है, बट वो उनका भी अलग अलग अपना अपना काम है, राइट। फिर तीसरा है जो कि टॉपिकल सोल्यूशन है। टॉपिकल में है हमारे ल्यूब्स है, ऑयल्स है, ये थोड़े वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके प्लेजर को बेहतर करते हैं, जो विच इज सेफ एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग योर प्लेजर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मार्केट में ड्यूरेक्स के और बहुत सारे ल्यूब्स हैं, पर उनमें सर्टेन केमिकल्स हैं जो कि मर्दों के लिए तो ठीक है, बट औरतों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बिकॉज यू नो फॉर एनीथिंग इन द सेक्सुअल हेल्थ डोमेन, for men it is external, for in a lot of things for women it's internal, right? ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने एक उठाया है। इससे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है जो शायद बहुत सारे लोगों को ये जानना भी होगा। लाइक व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, yes, देयर आर गंद भरा पड़ा है भाई, yes, ठीक है, इतने सारे केमिकल्स उनको इनटेक yes, करने पड़ते हैं, जिनका कह सकते हैं कि फ्यूचर में लाइक इंस्टेंट तो रिजल्ट नहीं आता, बट फ्यूचर में women faces lots of problems like having a baby, during having a baby उनको आते हैं प्रॉब्लम। तो is there something in आयुर्वेदा जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को और आसान कर दे, साइड इफेक्ट को और नेग्लेक्ट कर दे? बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें। So are you working in that or you are going to work in that? We are going to work in that. That's a very good question. I am going to also tackle contraceptives in a natural, much more safe and effective manner. डिग्री ऑफ सक्सेस कॉन्ट्रासेप्टिव का उतना नहीं है जितना केमिकल का है, क्योंकि केमिकल्स क्या करते हैं, बॉडी का पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देते हैं, तो वो बच्चा कंसीव ही नहीं हो पाता। बट हैविंग सेड दैट, आजकल ब्रांड्स है जो वीगन कॉन्डम्स बना रहे हैं, आजकल ब्रांड्स है जो नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स बना रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बिकॉज कई औरतों को लेटेक्स से एलर्जी होती है, कई मर्दों को लेटेक्स से एलर्जी होती है, बिकॉज वो चीप रबर यूज करते हैं। तो हम लोग उस स्पेस में नहीं जाएंगे, बट हाँ इन इंजेस्टिबल्स में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में we are doing our research, the team is doing a beautiful task. और not only that, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ यार, एक ल्यूब जो कि मर्द के लिए एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, बट फॉर अ वुमन इट्स एन इंटरनल एप्लीकेशन। तो वहां पर हम लोगों ने एक ऐसा ल्यूब बनाया जिसका बैंग ऑन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द वजाइना ऑफ अ वुमन, एंड इट इज एग्जैक्टली लाइक द बॉडी फ्लूइड। तो वो zero chemicals, and it is totally made up of Ayurvedic products. 0 chemicals, not a single chemical. उसमें बाइंडर भी हम वो यूज करते हैं। You are claiming it? Claiming नहीं, it is clinically proven. हम लोग उसमें बाइंडर भी वो यूज करते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, सॉसेस में। 100% एडिबल ल्यूब है, आप उस ल्यूब को उठा के पी सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। No one is doing that because बहुत सारी चीजें हैं, everyone knows that कि हाँ भाई हम ये करते हैं तो हमें ये इशू आता है, एंड हम वो नहीं करते, हम कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर सकते, तो मेरे को फ्यूचर में दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अभी आपकी ब्रांड और बड़ी हो सकती है। लाइक देयर आर मेनी पॉइंट्स और मेनी वॉइड्स व्हिच यू नीड टू फिल। सो अभी हम लोग उसमें एक एक करके, मेरा हमेशा एक एंटरप्रेन्योर इन द लास्ट 10 years what I've also learned, and this is one more value for your customers, whoever is starting a new company या किसी कोई early stage company चला रहा है, focus is the key to success. Right. मैं पहले फोकस किया मेन सेक्सुअल वेलनेस पे,
फिर मैं फोकस करूंगा विमेन सेक्सुअल वेलनेस पे, फिर मैं फोकस करूंगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे, और फिर इस पूरी कैटेगरी को एक्सपैंड करेंगे. तो इट इज अ वेरी फेज वाइज प्लान इन विच वी आर गोइंग टू, आई एम वेरी ग्लैड दैट गुड इन्वेस्टर्स आर बैकिंग अस. आई एम वेरी ग्लैड दैट देयर आर गुड पीपल एसोसिएटेड विद अस जो हमको बोल रहे हैं कि हाँ भाई तू आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ हैं. So that matters in business. Yeah, 100%. That matters everywhere यार. अगर आज गायत्री कुछ कर रही है और विवेक ने बस इतना ही बोल दिया कि तू कर यार, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, कोई दिक्कत वो नहीं. बहुत होता है. Exactly. Like वो बस ये नहीं होता है कि तूने कह दिया, बट वो सामने वाले को मोटिवेट हुआ शायद 100 टाइम्स कर देता है. Exactly. You inspire doing these things. So yeah. Yes. Like क्या होता है, जैसे मान लो मैं कुछ कर रही हूँ, उसमें मुझे तो पूरा 110% कॉन्फिडेंट है, बट अगर सामने वाला भी कॉन्फिडेंट है ना what I am doing, that means वो आइडिया सच में अच्छा है. Yes. क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम एग्जाम में पढ़ के जाते हैं जरूरी नहीं एग्जाम में वो आएगा, बट जब वो 4 टॉपर्स को या 4 और भी बच्चों को, टीचर्स को भी लगता है ना कि हाँ 10th बोर्ड एग्जाम में ये भी आएगा, तो कहीं ना कहीं आपने सही चीज को टारगेट किया है कि हाँ ये आ सकता है. ट्रू. तो हम लोग हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन द लॉन्गर रन. सो या दैट्स प्रीटी मच इट. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, लाइक जो कि अभी करेंटली फेस सफर कर रहे हैं, क्या उनके लाइक सिम्टम्स क्या क्या हैं, जब चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उनको क्या सिम्टम पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ अब उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या उनको कंसल्ट कराना है. वेरी गुड क्वेश्चन. सो यहाँ पे अगेन आई एम गोना टॉक टू यू इन अ वेरी मेडिकल सॉर्ट ऑफ अप्रोच. सब फॉर मेन एंड फॉर वुमेन दोनों मैं बताता हूँ. सबसे पहले मेन का बताता हूँ. इफ यू नॉट गेटिंग अ मॉर्निंग बोनर, गेट योरसेल्फ चेक्ड. If you are not able to maintain an erection at the time of gratification also, get yourself checked. Okay. If अगर आप compulsively masturbate कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको addiction हो रहा है इसका, get yourself checked. अगर आपको masturbation के बिना नींद नहीं आ रही, stress नहीं कम हो रहा है, masturbate करके ही हो रहा है, तो आपको chronic मतलब आपका compulsive masturbation की आपको addiction है, वो check करवा देना. ये एक बहुत बड़ा symptom है. If you are not able to obviously conceive a baby, but उसमें आपका sperm test और semen test सारे चीज़ें मतलब normal के आसपास आ रहा है और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, then get yourself and your partner both check for other things also. क्योंकि कई बार ये obstructive, non-obstructive हर तरह की चीज़ों से हो सकता है. If you are living in a high stress environment और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके libido पे बहुत बड़ा impact आया, मतलब आपको urge नहीं हो रहा सेक्स करने का, तो चेक करो. बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि द अर्ज टू हैव सेक्स इज बीइंग हॉर्नी. इट इज नॉट. लिबिडो इज द बेसलाइन ऑफ द बॉडी जो आपको द बेसिक अर्ज टू हैव सेक्स विच इज लिबिडो आपको बताता है कि आप हेल्दी हैं. तो एक अच्छा लिबिडो एक हेल्दी आदमी का हो सकता है. जब आप बीमार हैं तो आपको लिबिडो नहीं होगा, राइट. 102 फीवर के आदमी को सेक्स करने का मन नहीं करता बिकॉज वो बीमार है. तो अच्छा लिबिडो मतलब हेल्दी बॉडी. अगर लिबिडो नहीं है तो उसको चेक करवाओ. फॉर विमेन देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ डिस्चार्जेस जो आपको हो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो नॉर्मल है, चेक करवाओ. आपका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, उसको चेक करवाओ. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सडन वेट गेन हो रहा है या सडन वेट लॉस हुआ है, राइट, तो आप चेक करवाओ. पीसीओडी पीसीओएस की किसी भी सिम्टम को अगर आपको शुरुआत भी हुई है तो गेट योरसेल्फ चेक फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट बिकॉज दिस कैन बिकम अ much bigger problem and also affect your fertility. Right. So I think these things are the things that people should take care of. और सबसे बड़ी बात जो मैं कपल्स को बोलना चाहूंगा, एक दूसरे से बात छुपाने की जगह talk to each other about the problems. Transparency रखो. Sexual wellness, sexual life, sexual health, तीनों की बातें खुल के आपस में एक दूसरे से करो. हमेशा make sure करो that the conversation is both sided. आप एक्सपेक्टेशंस भी ले रहे हो एक दूसरे के कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, आपका क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. कुछ चेंज आपको नोटिस हुआ है अपनी बॉडी में, उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है. और वो इन्वायरमेंट जो सुखम बनना चाह रहा है लोगों के लिए, वो सबसे पहला एक कपल एक दूसरे के लिए बन सकता है. तो आई थिंक दीज आर द मेजर थिंग्स. इफ वी ऑल कीप इन हाइजीन, देन आई थिंक the world is going to be a better place. Right. And while asking you this question, there is one more query which I have arrived. Like, is there any side effect of consuming whey protein or something like? क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि जो जिम फ्रीक्स हैं
वो बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, रो प्रोटीन लेते हैं, तो वो उनकी सेक्सुअल लाइफ पे, सेक्सुअल हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट देखो, डालते हैं? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ठीक है। वे प्रोटीन से सेक्सुअल हेल्थ खराब नहीं होता, ओके। ये एक फैट है। बट होता क्या है कि जब कोई जिम जा रहा है तो वो ओवर यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। ठीक है। कई बार वो टेस्टोस्टेरोन के लिए कुछ साइकिल्स चलाते हैं, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खाते हैं, कुछ कुछ चीजें खाते हैं जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन साइकिल्स वो ऑप्टिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करवाते हैं, राइट। फिर जब उनको बहुत ज्यादा ऑप्टिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हो जाता है और फिर वो मतलब अपनी बॉडी को फुल जूस आउट करके पूरी बॉडी बिल्ड कर लेते हैं और फिर चेकअप कराते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन औरतों से भी कम होता है, राइट, क्योंकि उनने इतना ओवर यूज कर लिया टेस्टोस्टेरोन। तो फिर वो पीसीटी करते हैं या कई लोग जाके आयुर्वेदा और इन सबको उस समय अपनाते हैं और देसी पहलवानों के साथ बैठ के फिर अपने आप को रिस्टोर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को ओवरडू करोगे तो वो आपको स्पॉइल करेगा। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ऑप्टिमम, राइट। एक अच्छी, मेरे को ऐसा लगता है कि दिन में 1-2 बार 1 घंटा जिम जाना, आधा घंटा शाम को खाना खा के वॉक कर लेना, रनिंग कर लेना, अर्ली मॉर्निंग, अच्छी डाइट रखना, तीनों टाइम खाना खाना, सही समय पे खाना खा लेना, स्ट्रेस से दूर रहना, अपने पार्टनर से अच्छा कम्युनिकेशन रखना, ये बेसिक हाइजीन कर लिया ना, तो मुझको लगता है दैट इज मोर देन इनफ। एंड इवन यू आर अ वुमन, और मैं एक चीज़ अपने लौंडे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है जॉन इब्राहिम बनने की। किसी भी लड़की को, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। They want a good looking guy who has a good physique, and by a good physique they mean like someone who's fit and whom they can feel safe with. किसी को भी ऐसी इतनी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है for women, because I'm very sure women don't want that. Yeah. Right? Women want someone who's mature. Truly don't want that. Exactly. It's useless. Exactly. Women want men who are mature, whom they can have a conversation with and who can understand them and take care of them in all aspects of life, and not only the ones जो साइड में खड़े होके उनके प्रोटेक्टर और बाउंसर्स लगे। तो ये जो ऑब्सेशन है विद जिमिंग, ये अपने लिए कर रहे हो तो भी रोक दो, दूसरे के लिए कर रहे हो तो भी रोक दो। आपको अच्छा दिखना चाहिए, आपका एक एथलेटिक बिल्ड होना चाहिए और आपका बेसिक सही है, तो उसके बाद यू नो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। आई थिंक बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस देन दिस, बिकॉज हम ये भूल जाते हैं, और ये कामशास्त्र की बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि शरीर से जो अट्रैक्शन है ना, वो बस 5-7-10% का होता है यार। बाकी बहुत पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, मेन विमेन बोथ। उस पे काम कर लो, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन ऑल ऑफ दिस। Thank you so much, Vivek, for this insightful knowledge, and I'm very overwhelmed that today we have discussed about the problems which really exist. और बहुत से लोगों को एक तो मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ भाई, ये बातें करना बहुत कैजुअल हो गया है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जब तक आप कन्फ्रंट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। बात करो, कम्युनिकेट करो, और तुम्हारा जो भी तुम्हारा डॉक्टर है, तुम्हारा डाइटिशियन है, फिजिशियन है, वो तुम्हें हेल्दी कर सकता है। अपने स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करो एंड जस्ट बात करना शुरू करो। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं आज की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, हमारे स्ट्रेस लेवल अच्छा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारा पॉल्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में अफेक्ट करते हैं। तो इनकी वजह से जो भी बीमारियां हमें आती हैं वो इजीली हील हो सकती है। जस्ट टेक योर प्रॉपर डाइट एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच, एंड सुखम को भी फॉलो करो टू गेट मोर अपडेट्स रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज। एंड बाकी अभी इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं तो उनको भी तो यूज़ करना है। जब तक अपडेट नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि प्रोडक्ट आ गया है। Okay, bye. See you then in next podcast. Bye-bye. Thank you.